آپ سب کی امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج کا دن ہم سب کے لیے یقیناً بہت نارمل ہوگا. سب لوگ اٹھے ہوں گے کئی خواب لے کر, کئی امیدیں, کئی پازیٹیو سوچیں, لیکن آج کسی کے لیے بہت ہی بڑا دن بھی بن سکتا ہے اور کسی کے لیے بہت عام سا دن بھی ہو سکتا ہے. ایک بچی جس کو ہم کئی دن سے نیوز میں دیکھ رہے ہیں, افشین, جو 8 سال کی ہے, تھر کے شہر مٹھی کے قریب رہتی ہے, آج کئی خواب لے کر یہاں پر ہمارے پاس آئی ہے, کئی امیدیں لے کر آپ کے لیے یہاں پر آئی ہے کہ شاید آج آپ اس کی زندگی بدل سکیں, شاید ہم سب مل کر اس کی زندگی بدل سکیں, شاید آج ہماری دعائیں اس کی زندگی بدل سکیں. آج افشین آپ سے خود بات کرے گی, افشین کے ماں باپ آپ سے بات کریں گے, وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں, عوام سے کیا چاہتے ہیں, لوگوں سے کیا چاہتے ہیں, وہ آج آپ کو خود یہاں پہ بتائیں گے. افشین کے ساتھ ہوا کیا تھا, صحیح کہانی کیا ہے, وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے. کئی جگہوں پہ باتیں آ رہی ہیں, افشین گر گئی تھی تو یہ ہوا, افشین کے ساتھ یہ ہوا, ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ ہوا, لیکن صحیح بات آخر ہے کہ افشین کے ساتھ کیا ہوا. میں کل سوچ رہی تھی کہ جب افشین پیدا ہوئی ہوگی تو ماں باپ نے کتنے اس کے لیے خواب سجائے ہوں گے, یا جب بھی ہمارے یہاں کسی گاؤں میں, چھوٹے شہر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو خوش کم ہوا جاتا ہے, افسوس زیادہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دنیا اتنی مشکل ہے, لوگ پتہ نہیں کیسے ہیں, ہماری بیٹی کے نصیب کیسے ہوں گے, آگے گھر میں جائے گی تو اس کو کیسے رکھا جائے گا. لیکن اپنے پاس بڑا پھولوں کی طرح اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں آگے نصیب کیا ہو, لیکن جب تک ہمارے ساتھ ہے تو ہم اس کو سنبھال کے رکھیں. بٹ جب پھول جیسی بیٹی کو لوگ خوفزدہ نظروں سے دیکھیں, عجیب و غریب نظروں سے دیکھیں, سوالیہ نظروں سے دیکھیں, تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. ایک سیکنڈ کے لیے ہم اپنے بچوں کو ذہن میں رکھ کے سوچیں تو شاید ایک آئی تھنک میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کے کہ یار خدا نخواستہ ہمارے بچے کے ساتھ ایسا کچھ ہو اور سوالیہ نظروں سے کوئی اس کو دیکھے تو ہم پہ کیا گزرے گی. افشین کے ماں باپ پہ 8 سال کیا گزری ہے جب اس کی بچی کو دیکھ کے بچے اور لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس بچی کو کیا ہوا ہے, کچھ اس پہ اثرات تو نہیں ہے, اوہو ہمیں کچھ ہو تو نہیں جائے گا, یا اس کے بچوں کو اس بچی سے دور رکھیں. تو 8 سال ماں باپ نے کس تکلیف, دکھ اور درد میں گزارے ہیں وہ ہم جانیں گے. لیکن آج کا شو اتنے سارے سوالات ہیں, لیکن میں سوچ رہی تھی کہ میں کیسے کروں گی, افشین کے سامنے بات کیسے کروں گی. افشین جو امید لے کر ہمارے پاس آئی ہے, کیا وہ ہم اس پہ پورے اتر سکیں گے یا نہیں, لیکن اس کے لیے یقیناً آپ سب کا ساتھ چاہیے ہوگا. میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ کو افشین سے ملواؤں گی. افشین کے لیے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو صرف افشین کے لیے آئے ہیں, ان سے بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ ہم بچوں کی چیزوں میں بہت لاپرواہی کرتے ہیں, اس پہ بات تو ہوگی, لیکن ہم اس طرح کسی بھی بچے کو دیکھتے ہیں جو دیکھنے میں نارمل نہیں ہوتا, اس کے ساتھ کچھ بھی پرابلم ہوتی ہے, تو ہمارے بچے اور ہم بڑا عجیب ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے. ہم اچانک کسی کو مڑ کے دیکھتے تو 2 دفعہ مڑ کے دیکھتے ہیں, اگلا بندہ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے کہ یار اچھا میں کچھ ڈفرینٹ ہوں, میں کچھ الگ ہوں, میں کچھ ان سے مختلف ہوں. تو ہمیں کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت, یا پھر ہمیں اپنی اولاد کو کس طرح سمجھانا چاہیے کہ باقی بچوں کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ اگر آپ کوئی اپنے آپ سے مختلف انسان دیکھتے ہیں فزیکلی, تو آپ کو اس کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے, اس کو کن نظروں سے دیکھنا چاہیے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک, کہیں مزہ آئے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. گڈ مارننگ, پاکستان زندہ باد.
दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मौजूद है और फजीला कैसे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप दोनों के आने का बहुत शुक्रिया। और आज हमेशा इस तरह के जब भी हम शोज करते हैं तो आप लोगों का होना बहुत लाजमी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और मैं चाहूँगी कि लोगों को अब अफशीन से हम खुद बात करवाएं। कई दिनों से कई लोग अफशीन के बारे में जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और उनसे भी डायरेक्ट बात करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या अफशीन का इलाज मुमकिन है या नहीं है। तो आज डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, अफशीन की वालिदा, उनके भाई, उनके फादर और हमारे रिपोर्टर वली हमारे साथ हैं। तो अफशीन के लिए मैं चाहूंगी कि हम लोग खड़े होकर उसका इस्तकबाल करें और ढेर सारी अफशीन के लिए तालियां। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अस्सलामुअलैकुम। आपके आने का बहुत शुक्रिया वली, आपके आने का बहुत शुक्रिया। प्लीज, और अफशीन हमसे बात करेगी? अफशीन को आती है उर्दू बोलना? अच्छा, आप मुझे बताएं जरा अफशीन के बारे में। हम सब लोग एक तो अफशीन से बहुत प्यार करने लगे हैं और सबको बहुत परेशानी अफशीन की कि अफशीन को हुआ क्या था और डॉक्टर्स क्या कहते हैं अफशीन के लिए कि अफशीन का इलाज मुमकिन है या नहीं है। और अब अफशीन सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बेटी है। सजा पाकिस्तान पकड़ी मंजूर डॉक्टर हो गया। बल्कि आप हैंड माइक की बात करें। हाँ भाऊ, कैसे ना પહેલા જબ ये બહેન की થયો તો ને કી થયો તો જબ જડે નંઢી હતી પછી हुए કે પછી કિતે इलाज करायो એ સજો સુણાવો। ए सनम ये बच्चे खन आई है दा जी असा अच्छा। 2 साल में जी मुझे बताएं, मुख्य बुधायो। हाँ हाँ ये बच्चे खन गांधी है जैसा 2 साल एडमिट थी पछे असा मंजूर डॉक्टर क्यों जरवार उहे न दसी होशियार डॉक्टर पई होती उथे काकू उथे पेशाब उहे दवा दिना दे कंतरो पट्टो लिखे ना दे कंतरा पट्टा। जैसे ये पैदा हुई थी तो इसको 2 साल आपने अस्पताल में रखा? ना घर में पई। घर में? हाँ। गरीब माण्हू होता असां पैसो थी हथो कोनी कंध वारो मसलो हुयो या सफ़ा सही पैदा थी? पैदा सही थी पोइ असां 8-10 महीना थी पोइ संभाली। अच्छा वो पई होती उथे काकू उथे पेशाब। अच्छा, कह रही हैं कि पैदा हुई थी तो ये मसला नहीं था। वो 8 महीना थी बच्चा संभाला। अच्छा ना, इससे पूछिए कि इनसे पूछिए कि ये बहन भाइयों में इसका नंबर क्या है? भाउ भेणनि में काय नंबर ते आ? आखिरी नंबर। ऐं ॿिया इन खां पहिरियां केतिरा आहिनि? वो 4 नियाणे 3 पुट। 4 न्याणियूं 3 पुट। मतलब 4 5वां 8वीं, ये 8वें नंबर पे है। 4 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। तो इसका मतलब ये लास्ट नंबर पे ये। अच्छा, इसका मतलब है कि इनको ये मालूम है कि जब ये कह रही हैं कि ये पैदा हुई थी तो ये सही थी, राइट? कैसे इनको ये पता? क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे बच्चों से पता लग जाता है ना। किसी डॉक्टर ने बताया था ये सही थी या इनको कैसे पता था ये बिल्कुल सही थी 8 महीने तक? अच्छा अम्मा इहो ॿुधायो, जॾहिं पैदा थी त पहिरियां सफ़ा ॿियनि ॿारनि वांगुरु सही हुई? सही बिल्कुल सही हुई। सही। कंध वग़ैरह सही हुयो? हाँ। बुखार थियो का शेड़ी थी का बुखार थियो का शे थी? बुखार थियो। हाँ ठीक है। पोइ आहिस्ते आहिस्ते हुनजो कंध ईअं थियण लॻो? हाँ। ये इन्होंने जब पैदा हुई थी अपना ही दूध पिलाया था इसको? अच्छा, जब ये पैदा थी तव्हां पंहिंजो खीर पिया रहे हो इनखे? हाँ। अच्छा, दोनों तरफ से, जैसे गर्दन इसकी एक तरफ जो झुकती है ना, ये दोनों तरफ से दूध पिलाया था इसको? यानी गर्दन बच्चे जैसे पलटते हैं ना, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से इसको दूध पिलाते थे? यानी गर्दन दोनों तरफ मुड़ती थी? अच्छा, जॾहिं तव्हां हिनखे खीर पियारींदा हो पंहिंजो त हिन जो कंध ॿिन्ही तरफ़ हो कंदा हो या हिकिड़ी तरफ़? ॿिन्ही तरफ़। दोनों तरफ़। सुम्हे थी तॾहिं ॿिन्ही तरफ़ करे थी? हींअर नहीं सुम्हे थी त ॿई न पर। हाँ हाँ 8 महीना रही थी न पछा मांजी वॾी निंगरी धिको हथ मथे बीटोड़ी धिको पिना रही तो पछा बाय ना दसे। माइक दीजिएगा सनम, माइक दे दीजिएगा। आप ही अपने पास रखिए। इसके अफशीन की अम्मी के मुताबिक जब ये 8 माह की थी उसके बाद जब इसकी बहन इसको गोद में लेके बैठी थी
जब उसको मतलब खेलने के लिए लेके बाहर जा रहे थे तो उसके हाथ से वो गिर गई और उसको चोट लगी थी गर्दन में। उसके बाद ये इसकी जो गर्दन है वो आस्ता आस्ता जो है ना वो कमजोर होती जा रही थी। अच्छा ये अच्छा, I'm sorry आपकी बात काट रही हूँ। अब जो डॉक्टर्स को हमने दिखाया है, इनका पहले पॉइंट ऑफ व्यू यही था, उन्होंने यही कहा और कई जगहों पे कि ये बच्ची गिर गई थी उसके बाद ये हुआ है। बट जब डॉक्टर्स को दिखाया गया तो डॉक्टर्स हमें ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये जब पैदाइशी ये इसका मसला है, ठीक है। तो अब समझ नहीं आ रहा हम कि ये कह रहे हैं कि जब ये गिरी थी उसके बाद ये हुआ है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं, ये गिरने से नहीं हुआ, ये थ्रू आउट ये इसको जब पैदाइशी इसके साथ ये मसला है। तो हम लोग समझ नहीं पा रहे। एक इशू है, अगर आपकी डॉक्टर से बात हुई हो, मतलब अभी मैं इस बच्ची को देख रही हूँ वो एक साइड पर है, तो क्या वो दूसरी साइड पे भी कर सकती है अपनी गर्दन? बाकी डॉक्टर्स हमारे साथ आगे भी अभी इन्होंने ट्राई किया है कभी? पता नहीं। अम्मा हिन जो कंधर को हिन पासे थे तो बे पासे दर्द कोन थी दो कोशिश कई है कोशिश कई है हथे कोन लगान दे दर्द है ये। अच्छा हाँ मतलब इस चीज से इस तरफ अगर नहीं दूसरी मूवमेंट करवाओ तो उससे दर्द होता है। देखिए अब वजह उसकी ये है कि जब ये एक साइड से ये शॉर्टनिंग मसल है ना, यानी मसल एक साइड से छोटा हुआ है, राइट। तो ये जब ये शॉर्ट होता है तो जब बहुत सारी जब पैदाइश बच्चे पैदा होते हैं तो ये बहुत कॉमन बच्चों में हो जाता है कि किसी एक साइड के ऊपर मसल शॉर्ट होता है। जब मसल शॉर्ट होता है तो शुरू के अंदर क्या करते हैं कि उसको थोड़ी सी फिजियोथेरेपी के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू, बच्चों की इस तरह की एक्सरसाइज कि बच्चे के खिलौने इधर के बजाय इधर रख दिए जाएं, बच्चे को आवाज़ इस साइड से दी जाए, इस तरह की ट्रेनिंग करा के उस बच्चे के मसल्स को स्ट्रेच किया जाता है। बाज़ दफ़ा छोटे केसेस के अंदर ऐसे भी होता है कि बहुत माइनर सर्जरी से भी उसको सपोर्ट कर दिया जाता है ताकि उस तरफ ये चला जाए। अगर ये 8 महीने से ये शुरू हुआ और बच्चे 8-9 साल की है शायद 8 साल की है, तो वैसे अगर एक नॉर्मल आदमी को भी अगर एक करवट एक तरफ हो और अगर वो दोबारा उस तरफ करेगा तो उसके मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुके होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग राइट साइड से मोबाइल फोन पे बात करते हैं कंटिन्यूसली, वो यहाँ पे नहीं रख पाते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% लोगों को मैं अभी एक एक्सरसाइज कराता हूँ अपनी गर्दन मूवमेंट करने की, राइट साइड और लेफ्ट साइड के अंदर फर्क आएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। वजह उसकी ये है कि हम लोग अपनी मसल एक्सरसाइज तो करते नहीं है। यानी अगर मेरा नेक स्टिफ होगा और दूसरी तरफ तकलीफ हो रही होगी तो बजाय इसके कि मैं थोड़ा सा पुश करूं, मैं क्या करूंगा, ऐसे मुड़ जाऊंगा देखने के लिए। तो मैंने क्या किया, अपने उस मसल को तो मैंने स्टिफ ही रखा ना, यानी मेरा आदत ऐसी पड़ गई है, मैं गर्दन ऐसे रखता हूँ या ऐसे देखता हूँ। जब इधर मोड़ना पड़ा तो मैंने क्या किया, मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ क्योंकि मसल स्टिफ था। मैंने क्या किया, मसल को रिलैक्स करने के बजाय, अपने आप को पुश करने के बजाय, इसको फिजियोथेरेपी करने के बजाय अपनी ऐसे पोस्चर मोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पोस्चर खराब हुआ। वैसे अफशीन का ये बताएं कि क्या ये इतनी किसी छोटी सी लापरवाही की वजह से हुआ होगा? नहीं, देखें बात सारी ये है कि अपेरेंटली इनके डॉक्टर्स जो है वो उनके पास इमेजिंग इनकी जरूर होगी, इनका सीटी स्कैन हुआ होगा और डेफिनेटली जो है वो न्यूरो और ऑर्थोपेडिक से ही गुजरी होंगी। ये नहीं हुआ है, ये मुझे पता है कराया है ना, शायद अभी कराया है, लेकिन ये गिरने वाला केस अपेरेंटली जो केस डॉक्टर इनको देख रहा है वो डॉक्टर भी हमारे साथ होंगे। बहुत अच्छी बात है, वो सही बताएंगे। ये गिरने वाला केस नहीं होता, इतना सीवियर जो केस है जितना इसका नजर आ रहा है, ये गिरने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि गिरने वाला तो बहुत अगर अल्लाह ना करे गिरने के ऊपर इतना सीरियस आए तो फिर ये बच्ची चल के आई है, अभी ये मुमकिन नहीं हो पाता। तो ये गिरने वाला जो है वो केस नहीं है। एक आपको अच्छी तरह मालूम है कि जो बैकग्राउंड है, मैं तो देहात की बात नहीं कर रहा हूँ, शहरों में भी माओ की खुराक तो बहुत अच्छी है नहीं, खुराक अच्छी नहीं है। जो माएँ बनती हैं हमारे शहरों के अंदर भी किसी भी हवाले से, उनकी खुराक अच्छी नहीं है। जो एक माँ को खुराक चाहिए है एक बच्चे के लिए, अपनी सेहत के लिए, बच्चे की सेहत के लिए, जो उसकी कोख में होता है, इसमें थोड़ी सी इग्नोरेंस भी है, लापरवाही भी है और हो सकता है वसाइल की भी कमी हो। जाहिरी तौर पर यही लगता है कि जिस इलाके से आप वहाँ आए हैं वहाँ मेरा नहीं ख्याल कि न्यूट्रिशन, कैल्शियम, आयरन और कोई बैलेंस की कोई पता भी होगा। फिर 8 बच्चों की विलादत बजाते खुद ये शो करती है कि एक जमीन है ना, एक जमीन है, उस जमीन में से एक फसल होती है, जमीन भी कमजोर होती है। तो एक औरत जो है जिसके माशाल्लाह इतने बच्चे हों, उसकी भी तो अपनी सेहत का एक लेवल आहिस्ता आहिस्ता डिटोरिएट होगा ना, कम हुआ होगा। 8वें बच्चे के बाद जाके उसका लेवल क्या जो है वो रह गया होगा। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कि इस बच्ची को शुरू से ही प्रॉब्लम होगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते शुरू से।
जैसे आप ये बच्ची कब बैठना शुरू, मम्मा से पूछे बच्ची बैठना कब शुरू हुई थी? अम्मा 8 महीने तक तो सही थी ना? कॾहिं खां शुरू कयो आहे वेहण ते, माना जॾहिं नंढी हुई त साल खां पोइ वेहण शुरू कयो या 2 सालनि खां पई होती उथे काकूस उथे पेशाब, ठीक है, पचे असां केतिरा साल? 2 साल पई, 2 साल तक इसका मतलब नॉर्मल नहीं हो ना बेटा, 8 महीने में बच्चा बैठ जाता है ना। 8 महीने में बच्चा जो है, 8 महीने में बच्चा, अम्मा के मुताबिक जब ये 2 साल की थी तो वहाँ पर एक डॉक्टर आया था, डॉक्टर मंजूर, जो टंडो जान मोहम्मद का रिहायशी है, वहाँ पर मिठी आया था किसी दोस्त के पास। तो अम्मा वहाँ पे काम करती है उनके घर पे, तो वहाँ पर जब उनको बताया कि ये डॉक्टर हैं, उन्होंने जिक्र किया अफशीन का, तो उन्होंने बोला कि अफशीन मुझे दिखाओ। डॉक्टर साहब ने बोला कि अफशीन को ले आओ, उनको ले आए। जब इस बच्ची को डॉक्टर साहब ने देखा, इनको ट्रीटमेंट दी, उसका इलाज उन्होंने किया। उसके बाद देखें ये गरीब लोग हैं, इनका जो फैमिली का ताल्लुक है एक किसान है, इनके वालिद जो हैं उनको कैंसर है। अब जो कैंसर का मरीज है खुद, ये अम्मा जो है घरों पे काम करती है बतौर मासी, वहाँ पर कुछ पैसे कमाती है। इसके बेटे हैं वो मोबाइल शॉप पे एम्प्लॉई हैं, 5000 रुपये तनख्वाह पे। अब देखें इतने बड़े बच्चों की कफालत करना, वहाँ पर बच्ची को संभालना, इलाज करवाना मुश्किल है, मगर इन्होंने अपना घर बेच दिया सिर्फ अफशीन के इलाज के लिए। जाहिर सी बात है पेरेंट्स देखेंगे हमारा बच्चा है, उनके आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत है, भूख अफलास के बायस बच्चों की मौत है। 468 बच्चे रवां साल ग़िज़ाई किल्लत के बाद मौत के शिकार हुए हैं। तो ये लोग मतलब इलाज कैसे करवाएं? देखें हुकूमती सतह पर किसी को देखना चाहिए। हुकूमती बेअसी के बाद जब 468 बच्चे जो हैं मौत के शिकार हो गए, तो अफशीन भी वहाँ पर मसीहा की मुंतजर थी। तो जब हमारा पता चला, हमारे डॉक्टर दिलीप कुमार जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वहाँ पे मिठी में, उन्होंने इसको कैंप में देखा और उन्होंने कहा कि यार वली भाई इसको हाईलाइट करो, ये इसका इलाज होना चाहिए। जब हमने इसका खबर ब्रेक की तो उसके बाद ये सारा मामला मंजर पे आया है। तो डॉक्टर दिलीप ने काम किया, मगर ये तो गरीब कहाँ पहुँच नहीं सकते थे। तो सबसे बड़ा मसला इनका पॉवर्टी है, ये कुछ नहीं करते। एजुकेशन का रेशो थरपारकर में 0 है। हालात ऐसे हैं थर के, मतलब स्कूल बच्चे भेजना, बच्चों की तालीम तो बिल्कुल थर में 0 है। मैं माजूर चाहती हूँ, आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क और हमारे लोगों का गुर्बत नहीं है, जहालत है। और ये इस सब का जो, क्योंकि ज़ाहिर है तालीम नहीं है, बेसिक जो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात है वो नहीं है, तो ज़ाहिर हुकूमत तो ज़िम्मेदार है। जो भी इश्यूज़ हैं उनके लिए हुकूमत वक्त ज़िम्मेदार है। बड़े बड़े फंड्स हर दफ़ा हम बजट में सुनते हैं कि इधर के अस्पतालों के लिए, स्पेशली थर की अगर आप बात करें तो यही होता है कि जी वहाँ पे अस्पताल खोले हुए हैं, स्कूल खोले हुए हैं और ये किया हुआ है और वो किया हुआ है। तो जब इस तरह के केसेस हम देखते हैं तो हमें यही पता चलता है कि जी कुछ नहीं हो रहा, बज़ाहिर बातें बहुत हैं लेकिन। और दूसरी बात फिर हमें देखें, मैं अभी भी कुछ 1-2 जगह पे देख रही थी जहाँ पे ये काम हो रहा है कि जी जिस इनको डॉक्टर साहब ने बोला कि इनकी ज़ाहिर 8 बच्चे हैं और फिर डाइट वो नहीं है, वो चीज़ें नहीं इनके पास ही। तो वो भी एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो कि अब मैंने सुना है कि शुरू हो रहा है कि जी वहाँ पे लोगों को उनकी देखेंगे कि क्या खाते पीते हैं, उनको पूरी डाइट मिल रही है सही औरतों को या नहीं, और ये जो बच्चों के इश्यूज़ हो रहे हैं। लेकिन वही बात है, मैंने अभी सुना, पहले भी सुना था, लेकिन रिजल्ट हमारे सामने है। तो हमें टू स्टार्ट विद, अगर टेलीविज़न भी लोग देखते हैं तो हमें उन्हें कम से कम थोड़ा एजुकेट करना चाहिए कि देखें आप ये बोलें चलें अल्लाह ने उन्हें बच्चे दिए, अल्लाह में उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, लेकिन अगर आपका वसाइल कुछ नहीं है और आप बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहे हैं, दुनिया में ला रहे हैं इन रूहों को, तो ये भी आप उनके साथ जुल्म कर रहे हैं ना। ये भी तो औलाद का कत्ल ही है ना एक तरह से, कि आप उन्हें दुनिया में ला रहे हैं और आप उन्हें बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सक रहे और फिर आप कह रहे हैं कि हम गरीब हैं। यू नो, आपके इतने इशूज़, अब इनके हस्बैंड इतने बीमार हैं ये बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने मतलब ये नहीं देखा कि हम थोड़ा सा खानदान अपना छोटा रखें। तो हमारे बहुत मसाइल हैं और नहीं, उन्हीं मसाइल की वजह से तो ये इश्यूज है ना। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखें एजुकेशन का मसला है, हॉस्पिटल्स तो नहीं है, मगर वही बात है ना कि टू स्टार्ट विथ हमें हर किसी को अपने घर से शुरू करना है। हमें इनको तालीम देनी है कि आप अपनी सेहत, तो अगर अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, इंसान तो मर रहे हैं। लेकिन वही फजीला जी, मेरे कहने का मकसद ये है, वही आप मुझे बताएं कि मतलब वहाँ पे थर के हालात हमने देखे, हम लोग जाते हैं ना, आपके स्कूल्स हैं ना, आपके वहाँ पे कोई अवेयरनेस के लिए शोज होते हैं ना, वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, तो इनको कहाँ से कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? बात सारी यही है, बात आपकी इदारे नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं। बात सारी ये है कि ऐसे आप मेरा पॉइंट समझिए, मैं क्या आपका बात बिल्कुल पॉइंट सही है। मेरा ख्याल ये है, देखिए पहले कुछ तो बुनियादी बातें हैं कि ये बच्ची पाकिस्तान की बच्ची है,
बुनियादी बात sorry, ये इमरान भाई आपकी जी बात काटू, काफी देर से कॉल है हमारे पास, सही। वो साहिवाल से हमारे पास कॉल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हमें कॉल्स कर रहे हैं, पैसों के लिए कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको कहती हूँ, और जो कि हमारे साथ ये हुआ है पास्ट में, और कई चैनल्स पे ये होता रहा है कि आप लोग कॉल्स तो कर लेते हैं, आप लोगों को लगता है कि जी चलो हमने कॉल कर लिया, आपका नाम भी आ गया, लेकिन बाद में आप लोग मदद नहीं करते, और जब कॉल ले लेते तो हमें भी एक उम्मीद हो जाती है, और यहाँ से वो फैमिली भी, एक खानदान एक उम्मीद लेके जाता है कि चले अब हमारा इलाज मुमकिन होगा, या हमारे लिए इतने पैसे जमा हो गए। बट जब आप 6-8 कॉल सुनते हैं शोज में, तो आपको लगता है ओहो इनके पास इतने पैसे जमा हो गए, ये तो करोड़पति हो गए। ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। अमाउंट जितनी यहाँ पे हम ऑन एयर फिर बताते हैं, क्योंकि हमें जो कॉल्स आती है उस हिसाब से, बाद में जब हम अकाउंट्स देखते हैं तो इतने कम पैसे होते हैं कि हमें खुद शर्मिंदगी होती है कि यार इतने सारे लोगों ने हमें झूठी उम्मीदें दी। तो प्लीज अगर आप पैसे नहीं दे सकते, आप लोग कॉल ना करें, सिर्फ दुआएं दे दें, दुआएं ही काफी है, वो ज्यादा कीमती होंगी बजाय एक झूठी उम्मीद देने के। तो झूठी उम्मीद हमें मत दीजिएगा, ना ही इस बच्ची को, ना इस खानदान को जो बहुत सारी उम्मीदें लेकर आई हैं। अच्छा, साहिवाल से हमारे पास कॉल थी जो कि ड्रॉप हो गई, उन्होंने क्या मैसेज दिया? अच्छा, एक 16 साल बच्चा है, उसने हमें कॉल किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? जी साथ जो तो ही बात कर रहा हूँ सखर से। जी साथ, क्या बात करना चाहेंगे? जी मैं इस बच्ची को डोनेट करना चाहता हूँ पैसे। अच्छा ठीक है, कितना डोनेट करना चाहेंगे? 10,000 रुपीज। चले, बहुत शुक्रिया। ये पॉकेट मनी से, 16 साल का बच्चा है, राइट? पॉकेट मनी से अपने, बिल्कुल। देखिए ये है स्प्रिट, ये है स्प्रिट बहुत कि 16 साल का बच्चा है तो लाजिमी उसकी पॉकेट मनी होगी। आई डोंट थिंक वो पॉकेट मनी कमाता से ही कर होगा, रहा है वो। लेकिन ये है वो स्पिरिट जिससे मैंने बात कही थी कि ये बच्ची जो है वो पाकिस्तान की बच्ची है। बिल्कुल। और 468 बच्चे जो मेरे भाई ने बताया कि जो सिंध के अंदर अपनी जानों से चले गए, जाहिर है वो भी हमारे बच्चे, तो ये अलमिया है ना। अच्छा, आपकी फजीला बहन बिल्कुल सही कह रही है, अगर हम उनको समझाएंगे नहीं तो रोकेंगे कैसे? और आपका बात बिल्कुल सही है कि हम समझाएं कैसे। यानी बात ये कि अगर हम हुकूमत का इंतजार करते रहें या लोगों का इंतजार करते रहें तो वो तो नहीं होगा। हम समझाएं कैसे? या तो ये है कि हम इस तरह के प्रोग्राम, जाहिर है वो लोग यहाँ नहीं आ सकते, तो एयर वाई थोड़ी सी हिम्मत करें, हम चलते हैं वहाँ पे, फजीला को लेके चलते हैं, हम चलते हैं वहाँ पे, हम वहाँ पे लोगों को जमा करते हैं, वहाँ पे हम प्रोग्राम करते हैं, वहाँ लोगों को बताते हैं बुनियादी सेहत क्या होती है, बुनियादी जो है वो तरबियत क्या होती है, बुनियादी बिल्कुल बुनियादी बात क्या होती है, ताकि लोगों को समझा सकें कि भाई ये जो बच्चे हैं इनको कैसे पता लगे कि हमें कैसे पालना है, कैसे पता लगे कि हमें क्या खाना है, कैसे पता लगे हमें कैसे ख्याल रखना है, कैसे पता लगे कि हमें कैसे वक्फा जो है वो रखना है ना। कुरान पाक कह रहा है 2 साल तक दूध पिलाओ, बड़ा नेचुरल है ना, वक्फे की बात कर रहा है, बड़ा नेचुरल है ना। अगर बच्चे को कह रहे हैं कि 2 साल दूध पिलाओ तो क्या बात हो, क्या कह रहा है? यानी अगर एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे को उस बीच में दूध पिलाएंगे तो मुश्किल होगी ना, माँ के लिए भी मुश्किल होगी, दोनों बच्चों के लिए मुश्किल होगी। तो ये चीज अगर हम उनको जाके जो है वो समझाएंगे। मैं फिर अभी भी थोड़ी सी दोबारा इनसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपको ये पता है कि बच्ची बैठना कब शुरू हुई? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। 2 साल। तो इसका मतलब है कि अगर 8 महीने तक ये बच्ची नहीं बैठ रही तो इसका मतलब है पहले से इशू होगा ना। मतलब आपको मालूम है कि 8 साल की बच्ची जो है वो बैठ 8 महीने की बच्ची बैठ जाती है 8 महीने की। अच्छा, एक बात इनसे पूछा, अम्मा हिन जो कंध आहिस्ता आहिस्ता हीअं थियण शुरू थियो या हिकदम सां कंध हिन जो ईअं थियो? 1 साल खां पोइ आहिस्ता आहिस्ता वली आहिस्ता आहिस्ता अॻे ई जब ये 1 साल की थी तो पहले बिल्कुल हिलता था। बता रही एक सेकंड। अदा अॻे ई लुड़तो ईअं करे ई लुड़तो पछी असां ॾाहे न उनके पास ॾसियो माइक जेको है, ॾाहे वली। थो न उहे न उहो ईअं हिक पासे करे बस सम्झे वो आहिस्ता आहिस्ता अॻे चारे पासे लुड़तो डॉक्टर साहब जॾहिं मंज़ूर तव्हांखे मेडिसिन ॾिनी उन खां पोइ वली उनके उहे पास खां माइक पछी तयारु लगा थिए हुआ है, हलण माइक लगा थी हुआ गया है। कंदरो पटो लिखे ॾिना कंदरो पटो असीं ग़रीब माण्हू था मिना मिलियो अहिड़ो त न आहे त तव्हां ग़रीब माण्हू पटो कोन था, तव्हां घर विकिणी छॾियो, न, पटो असां कोन था फोन वठी मिलियो सघो। न, असीं- पटो ईंदो आहे 100, 150, 200 जो यार। हमें उथ मिठी बि मिले नी इथ असांजा कोन लिया न त पर हाणे तव्हांखे एतिरी परेशानी आहे त तव्हां कंहिंखे मोकिले घुराए सघो था, कपिड़ा बि त पायो था, मानी बि त खायो था, त पटो घुराए कोन 500 जो सघंदा, हूंदो ग़रीब वधि में वधि। न, ये देखिए ये थोड़ी सी नेग्लिजेंस भी है कि वो हम गरीब वो लोग हैं पट्टा तो हम समझ के गर्दन सही के लिए दे उसको, जाना। मैं ये मंजूर सोच रही थी कि इस डॉक्टर बच्ची को होशियार एक सपोर्ट अगर ना लगती मंगा थोड़ी तो शायद हाँ, उसको support बैलेंस कर मिल सकते, उसको अभी भी तकलीफ सपोर्ट ही कम हो। लगेगी। अभी भी सपोर्ट अभी जो इसका जो प्रोसीजर होगा वो आहिस्ता इसका आहिस्ता प्रोसीजर में वही होगा कि अभी भी सपोर्ट ही लगेगी उसको, क्योंकि ये उसका मसल जो है
वो मसल को जब सपोर्ट मिलेगी तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू होगा, फिर इलाज होगा या जो भी चीज होगी। अच्छा, बाकी बच्चे नॉर्मल हैं, बाकी इनके बच्चे बिल्कुल बाकी नॉर्मल सारे हैं, किसी बच्चे के साथ normal कोई इशू नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। सबने और आपके खानदान में ही शादी हुई थी? खानदान में होगा इनको इशू, पता नहीं होगा बच्चों में। तमाम खानदान निकलो ही है ना शादी जो, हाँ बिल्कुल नहीं है। खानदान में ही। अच्छा, ये जो इनके बाकी बच्चे हैं उन्होंने कब बैठना शुरू किया था? इससे पहले 7 बच्चे हैं। बाकी तो सारे बच्चे नॉर्मल जैसे बच्चे महबूब, बैठते हैं। आपको नॉर्मल का मतलब हमारे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है। सही। तो जब हम मुझे नॉर्मल बैठना कहते हैं, हम शुरू सवाल कब पूछ हुए? रहे हैं कि बैठना कब शुरू किया इनके बाकी 7 बच्चों ने, कौन से महीनों में? ब्याज के बारड़ा हुआ उहे बारड़ा इन ही उम्र में जीअं ई नंढा हुआ वॾा थिया त केतिरी उम्र में वेहण शुरू कयो? वो 8 महीना रहा थी तन घिसकता पगला ले 8 महीने के होते थे वो 8 बैठना माह के शुरू थे, करते थे। चलते थे सही। तो जब ये 8 महीने की बैठने नहीं शुरू हुई उस वक्त क्या किया उन्होंने? ये मेरा सवाल है। गिरी कब थी? ये 2 साल की। अफशीन थी हुई तो उन टाइम छा थियो अफशीन के? अफशीन वो कानी धिक्को खादा असी ही समझा धिक्को अच्छा, खादा धिक्को। दाय जिपने तो ही है अम्मा डॉक्टर धिक्को केड़ी उम्र में खा गई? 8 महीना माह रहती की थी। मिनकी भीतर लते हुए इन खेराया। इनको कंफर्म नहीं है ये कि उन्होंने मतलब इनको चोट खाई है या कुछ गिरी मतलब वो कह रही है, 8 है, मैम महीने इनके में कंफर्म उसको नहीं दिक्कत है। था। ये कहते हैं और हमने 1 साल के बाद समझा, गर्दन मुड़ी से। मतलब ऐसा ही है। इनके दिमाग के मुताबिक कि हमने समझा कि ये गिरी है, मगर चोट लगी या कोई एक तस्दीक हो जिस बात की वो नहीं। सऊदी अरब से हमारे पास एक कॉल सुबह है। है इनको। ठीक है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद इरफान बात कर रहा हूँ जी, सऊदी अरब से। जी इरफान साहब, क्या बात करना चाहेंगे? क्या मदद कर सकते हैं आप जी हमारी? मैं भाई सनम आपका शो देख रहा हूँ। बेसिकली तो मैं भी एक मजदूर हूँ, किसान का बेटा हूँ, जी। और मैं ये बात करना चाहता हूँ आपसे कि मैं पहले तो इस बच्ची के लिए बहुत सारी मैं दुआ करूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसको सेहत याबी दे। आमीन। और दूसरे नंबर पे मैं इनको 30,000 रुपए डोनेट करना चाहता हूँ, और आप मुझे बता दीजिए कि इसका क्या तरीकाकार है हम आपको और अकाउंट नंबर आपको मैं कैसे हमारी- पैसे ये डोनेट कर सकता हूँ। मेरी टीम अभी आपसे बात करती है, अभी आपको अकाउंट नंबर वगैरह सब बताती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और हम अकाउंट नंबर इन्हीं का डायरेक्ट देंगे, किसी और का नहीं देंगे, इनका देंगे ताकि जो भी मदद कर सके इनकी करे। और अफशीन के फादर हमारे साथ मौजूद होंगे जिनको मुंह का कैंसर है, और अफशीन के डॉक्टर हमारे साथ होंगे, वो क्या कहते हैं वो जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और जैसे अम्मा ने कहा सबसे छोटी है तो मुझे बहुत प्यारी है और मेरी दुआ है कि वो ठीक हो जाए। और अब वो सिर्फ उनकी बेटी नहीं, हम सबकी बेटी है, मिलके कुछ करेंगे और यकीनन दुआ करेंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे तब तक ज़िंदगी दे जब तक बिल्कुल ठीक हो जाए और हम इसको एक ठीक बिल्कुल नॉर्मल अफशीन देखें इंशाल्लाह ताला। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अफशीन को जरूरत है आपकी मदद की। आगे बढ़ें और अपनी हैसियत के मुताबिक अफशीन की मदद कीजिए। हो सकता है आपकी मदद बदल दे एक नन्ही जिंदगी। अफशीन को जरूरत है आपकी मदद की। आगे बढ़ें और अपनी हैसियत के मुताबिक अफशीन की मदद कीजिए। हो सकता है आपकी मदद बदल दे एक नन्ही जिंदगी। ओके जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पर अफशीन के फादर मेरे साथ है, अल्लाह जोड़ियो साहब, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम अंकल, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? वालेकुम सलाम कया गाला वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम। और सर में आया या मेरी इलाज नाला कुंभार है। मूंखे बीमारी थी है कैंसर वारी, ॿियो मुंहिंजो कमाइण वारो कोन आहे, छोकिरो आहे बेरोज़गार, ऐं छोकिरी मुंहिंजी 8 सालनि जी आहे, उहो बि बीमार आहे। त असीं ग़रीब माण्हू ॿ दफ़ा अॻे दिल्ली पसंदि तेड़े आयो असांखे दिल्ली से डॉक्टर हुनजी महिरबानी जेको असांखे हिते वठी आयो। अॻे ॿ दफ़ा असां तेड़े आयो। हाणे हुकुम के असीं सलाह कयूं त असां ग़रीबनि जो इलाज करायो वञे ऐं मदद ॾेई वञे कई वञे। ठीक है। और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर दिलीप कुमार साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और ब्रेक में भी, ये नहीं कि ऑन एयर में कह रही हूँ, लेकिन ब्रेक में भी बहुत कह रहे थे कि आपने बड़ी मदद की है। पहले भी आप इनको कराची लेकर आए। इस केस को आप कई सालों से देख रहे हैं, आपको पता है कि केस क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक तो इनके फादर का भी मुझे ज़रूर बताइएगा, इनको मुंह का कैंसर कब से है, और इनका जो है अफशीन का क्या वाकई गिरने से ये हुआ है, और बाकी जो हमने कल डॉक्टर्स को दिखाया सब वो लोग क्या कह रहे हैं कि बच्ची को प्रॉब्लम क्या है, क्या ये ठीक हो सकता है? हो सकता है तो इलाज पे कितने पैसे लगेंगे? मैंने इसको 3 साल से नहीं देखा है, हमने इसको 3 महीने पहले देखा था। ठीक है। हमने यहाँ पर हम एवरी ईयर हमर जगदीश सोशल फोरम के नाम से मिट्टी में एक बड़ा कैंप लगाते हैं, फ्री मेडिकल कैंप। उस कैंप में मोर देन 5000 पेशेंट्स आते हैं, और मेरी प्रैक्टिस 12 साल कराची की है। जब से मैंने थरपाकर में ज्वाइन किया है, तो हम लोग इसी तरीके से जब कैंप्स लगाते रहते हैं तो कराची के कंसल्टेंट को बुलाते हैं मिट्टी में। तो उस कैंप में ये लड़की आई थी, उसके बाद इस लड़की को हमने देखा था। फिर इसी लड़की की सपोर्ट वहाँ के मकामी MPA डॉक्टर महेश कुमार मलानी और गुल मोहम्मद लाट ने इनकी हेल्प की थी। हमने इसको बीइंग मेडिकली इनको यहाँ से कराची भिजवाया, ट्रांसपोर्ट दी, इनको फैसिलिटेट किया, इनको वहीं पर राइश करवाई, इनके मजीद इन्वेस्टिगेशन करवाई। पहले जब इनकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके साथ अफशीन के फादर की हमने बायोप्सी कराई थी। इसकी माँ की ऐसी हालत थी कि जब हमने अफशीन का इलाज करा रहा था तो इसके बाप को मैंने जोरी ज़बरदस्ती भिजवाया था। तो वो ये लोग इतने अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके थे कि अपने जो इसके जो फादर है अफशीन के, अल्लाह जुड़ियों को साथ लेके जाने के लिए ये तैयार नहीं थे। फिर वहाँ के हमारे दूसरे जो सोशल एक्टिविटीज हैं सुशील कुमार मलानी, वो और मैं दोनों इनके घर गए। हमने इनके दूसरे रिश्तेदारों से इनको फोर्स किया कि भाई आपको कराची जाना पड़ेगा, हम हर चीज़ की आपको फैसिलिटेशन करेंगे। क्योंकि देखें सिर्फ पैसा देना वो चीज़ें सब कुछ नहीं होता है, दूसरी चीज़ें मोटिवेशन करना, काउंसलिंग करना, और ये बहुत सी चीज़ें होती है जो कि वो हमारे मुआशरे में कुछ ये चीज़ें नहीं मिलती है। बहरहाल हमने इनको इस हाल में अफशीन का जब इलाज करवाया तो उसके साथ हमने अल्लाह जुड़ियों को भी कराची भेजा, इसके CT स्कैन कराया, इसके बायोप्सी कराई, अफशीन के भी हमने CT स्कैन कराया। उन दिनों में हमारा बेड लक हुआ कि न्यूरो सर्जन और स्पाइनल सर्जन जो बेस्ट थे उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकी। फिर ये 2 दिन कराची इनको स्टे कराया था, फिर वापस आ गए। तो अफशीन के फादर के जब टेस्ट कराए थे तो इसकी माँ के अल्फाज थे, जब इसकी बायोप्सी की रिपोर्ट मैंने आगा खान से उठाई थी, जब इसकी माँ को मैं देने गया था तो इसके वर्ड से मुझे आज तक मैं उसको भूलता नहीं हूँ। इसके माँ ने मुझे ये कहा था, तुमने इस अल्लाह जुड़ियों के ऊपर 40,000 रुपये क्यों खर्च किए? मैं 40,000 रुपये में 6 महीने अपने गुजारा करती। मैंने कहा तुमको इसका अंदाजा ही नहीं है, ये तुम्हारे 40,000 खर्चे से इसकी अगर जिंदगी बचती तो ये तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे सारे बच्चों को तुम्हारी फैमिली का ये मैन है बंदा, तो वो सपोर्ट करता। अब जो नसीब में कह रहे हमें पता था इसका कुछ भी नहीं, आपने क्यों कराया? मैंने कहा हमें आखिरी दम तक कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल इनकी रिपोर्ट में एक राइट चीक स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा आ गया था। वहाँ के ऑन्कोलॉजिस्ट से मैंने भी कंसल्ट किया था, उन्होंने कहा कोई आगे इसकी कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी या सर्जरी की ऐसे नहीं होगी। फिर भी हम आपके प्लेटफॉर्म से शौकत खानम मेमोरियल से हम अपील करेंगे कि इसकी अगर आगे भी हो। हमने अपनी तरफ पे जितने ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस किया था तो उन्होंने कहा था इनका आगे कोई इतना बेनिफिट नहीं होगा। तो ये रही अल्लाह जुड़ियों की कहानी, बहुत कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद अफशीन की जो बात थी, उन दिनों में ये कराने के बाद इसी मंथ में हमने इसको दोबारा इनकी अपॉइंटमेंट ली थी। JPMC में हमारे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर घनश्याम जो सर्जन है, उन्होंने हमारी हेल्प की।
ان کو ہم نے گائیڈ کیا. اس کا پیٹ سی ٹی اسکین ہوتا ہے وہ ہم نے کرایا. یہ 1 ویک ہاسپٹلائز تھی وہاں پر. ان کے ساتھ انہوں نے ایک ریکمنڈیشن کی کہ اس کا ایم آر آئی ہونا چاہیے کرینیو ورٹیبرل کا. وہ ہوا ٹھیک ہے, وہ بھی ہم نے کرایا. جے پی ایم سی کی مشین کا تھوڑا سا پرابلم تھا, ہم نے پرائیویٹلی کرایا. بہرحال ہو گیا. ان دوران ہمیں بہت سی مشکلاتیں آئی, جیسے کہ اس کی ایم آر آئی کرنے کے دوران یہ بچی کی اتنی اب نارمل موومنٹ ہوتی تھی تو اس کا ایم آر آئی بہت مشکل سے ہوتا تھا. تو پھر ان کو ہم نے کینولیشن کے ذریعے سیڈیشن دی, اور یہ فیملی بیچاری اس دوران بہت زیادہ ڈسارڈیڈ ہوتی تھی. تب مگر ہم نے ہر جگہ پہ ہم نے اپنی ہمت نہیں ہاری. لیکن میں جاننا چاہتی ہوں, میرے ساتھ پورا پاکستان جاننا چاہتا ہے, اور جہاں جہاں ہمارا شو دیکھا جا رہا ہے, کیا افشین کا علاج ممکن ہے؟ کیا اگر آپ سے پہلے ڈاکٹر صاحب جو بیٹھے ہیں نا, وہ ڈائگنوس اگر آپ کو پہلے بتا دینا, جب یہ بتا رہے ہیں کہ ایم آر آئی کے اوپر جب آپ نے مشین دیکھی ہوگی, لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ وہاں لٹا کے پھر اس کو اندر بھیجتے ہیں, تو اگر بچی اگر اسٹیبل نہیں ہو سکتی, سیٹنگ نہیں ہو سکتی, اس مولڈ میں نہیں آ سکتی, تو کتنا مشکل ہوا ہوگا کہ کسی طرح اس کو انہوں نے کچھ بے ہوشی دے کے, کچھ نیند دے کے وہ کوشش کی ہے حتی الامکان کے جب تک ہم وہاں اسپائنل تک نہیں پہنچ جائیں, جب تک ہم ان موروں کے اندر رگوں نسوں تک نہ پہنچ جائے, جس کی وجہ سے اس کا بیلنس نہیں ہے, تو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے نا. تشخیص اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب تک آپ اس کونے تک نہ پہنچ جائے کہ کہاں پہ ڈیمیج ہوا ہے, تبھی تو آپ علاج کی طرف جائیں گے نا. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی بچی جس کا ایم آر آئی ممکن نہیں ہو رہا, یعنی ہم تشخیص تو جب کریں نا جب ایک ایم آر آئی ہو سکے. ایک نیورو سرجن, ایک اسپائنل سرجن, ایک آرتھوپیڈک سرجن کب کام کرے گا؟ جب کہے گا کہ یہ ایم آر آئی ہو جائے. لیکن اس ایم آر آئی کے لیے بھی تو فٹ ہونا چاہیے نا بچے کو. تو انہوں نے ایم آر آئی کرنے کی جو جدوجہد کی وہ ہوا, اس کے بعد ڈائگنوز کیا ہوا, اس کے بعد پھر علاج کی طرف جو اب میں آپ کی اس کی ڈائگنوز کے اوپر جاؤں گا. تو پھر ہماری میرا کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ایم آر آئی ہمارا 3 گھنٹے تک ہوا. تو یہ فیملی اتنی ڈسارٹیڈ ہو جاتی تھی کہ یہ ایم آر آئی نہیں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, ہماری بچی کا کچھ نہیں ہوگا, ہمیں چھوڑ دو. میں نے کہا نہیں, ہم ہمت نہیں ہاریں گے, ہم اس کی بیماری کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو کیا ہے. تو جب ایم آر آئی ہوا, جو اس کے سی ٹی اسکین ہوئے, جو ان کی رپورٹس میں آئے, پھر جو نیورو سرجن, اسپائنل سرجن, انہوں نے ان کی جو رپورٹ فائنل کی, اس میں C1 C2 ورٹیبرا, جو کرینیو ورٹیبرل جو جنکشن ہوتا ہے, جو ہمارا سر کی جو ہڈی ہوتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, اس کی پیدائشی وہ ہڈی دونوں جڑی ہوئی ہے. تو یہ ریئر کیس ہوتا ہے, لاکھوں میں سے ایک. بالکل. تو اس بعد ہم ایک اس کی وجہ سے نہیں, اس کی دوسری میں آپ کو اس ہسٹری پہ بھی جاؤں گا. بینگ اے پیڈیاٹریشین, میں نے خود ان کی یہ ہسٹری لی تھی, کیونکہ جیسے برتھ ہسٹری اس کی کوئی ٹراما کی ہسٹری نہیں تھی. بعض دفعہ نارمل ڈلیوری میں کبھی بچوں کا اس طریقے سے کوئی ٹراما ہوتا ہے تو اس میں یہ ہو جاتا ہے. تو اس کی ڈلیوری ایک پرائیویٹ بھی انہوں نے کرائی تھی, یہ بھی اس کی مدد سے میں نے پوچھا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ لوکل دائی سے لوکل ایسی ہو جو انہوں نے اپنا کچھ کرایا, یہ نہیں تھا. اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کہ ڈیولپمنٹل ہسٹری, جو ڈیولپمنٹل ہسٹری تھی اس کی ڈیلیڈ تھی. اگر میں آپ کے ساتھ آپ سے آگے بات بریک کے بعد کروں, ہمیں یہاں پہ نیوز بریک لینا ہے اور بعد میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ کچھ دیر بعد احسن خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جو صرف افشین کے لیے آج ہمارے پاس یہاں پر آ رہے ہیں, اور جو افشین کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو احسن خان سے بھی ملاقات ہوگی, اور مزید یقیناً آپ سب کا سوال ہے کہ علاج ممکن ہے یا نہیں ہے, اس بات پہ ہم سب کے ایک دل جو ہے وہ بڑے بند ہیں, اور ہم ایک اچھی نیوز, خوشی کی نیوز سننا چاہتے ہیں. اور احسن نے کل ملاقات بھی کی تھی, وہ پکچرز بھی آپ کے سامنے, ویڈیوز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. افشین کو ضرورت ہے آپ کی مدد کی. آگے بڑھیں, ہو سکتا ہے آپ کی مدد بدل دے ایک ننھی زندگی.
ओके जी, वेलकम बैक। और आप सबको पता है कि आज अफशीन हमारे साथ हैं और अफशीन की न्यूज़ काफ़ी जगह आपने सुनी, कई जगह आपने पढ़ी, और आज अफशीन खुद हमारे साथ यहाँ पर लाइव शो में मौजूद है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, इतनी सारी कॉल्स आ रही हैं अफशीन के लिए, लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे डायरेक्ट लोग बात कर रहे हैं, हमें कॉल्स कर रहे हैं कि किसी तरह हमारी बात करवा दें या हम अफशीन के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे एक उम्मीद है कि लोग माशाल्लाह वाकई इसी तरह ही होता है कि लोग इतने आगे बढ़ चढ़ के मदद करने की कोशिश करें। अभी ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास कॉल है, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, अली क्या बात करना चाहेंगे? मैं ठीक हूँ। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अफशीन को एयरवाई न्यूज के लिए लेके आया और मॉर्निंग शो पे बिठाया। बहुत शुक्रिया। इसकी न्यूज मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले एक डेली मेल जो फेसबुक सोशल मीडिया पे एक पेज है उस पर मैंने देखी थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ उस टाइम पे, मैं घर में अकेला बैठा था, मैं रो पड़ा उस टाइम पे जब मैंने इसकी हालत देखी। और फिर मैं ट्राई कर रहा था कि इन लोगों के कांटेक्ट नंबर मैं किसी तरह से भी हो हासिल कर लूं, लेकिन कल रात को 6-7 बजे इस तरह से मैं बैठा था। इसके बाई ने सोशल मीडिया पे कमेंट्स में नंबर्स और अकाउंट नंबर सब कुछ डाले थे। फिर मैंने इसकी बाई को डायरेक्ट फोन किया, उसकी बात हुई थी मेरी, और फिर उसके बाद उसने मुझे इसकी फिर मैं डॉक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने पिछले 3-4 महीनों से रेगुलर इसकी जो केस है वो हैंडल कर रहा है और अभी भी कर रहा है। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हुआ और उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर दिलीप नाम है मेरे ख्याल में उसका। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मेरी बात उसी बात हुई कल रात को। फिर वो बोल रहे थे कि कल हम जा रहे हैं, आज रात हम जा रहे हैं, यानी कल रात के कराची के आगा खान हॉस्पिटल में, इसमें हम डॉक्टरों को दिखाएंगे कि इस पे कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा क्या। फिर मैंने बोला कि आप जाओ हॉस्पिटल, जाओ जिधर भी जाना चाहते हो जाओ। हम इधर से एज अ ह्यूमन, ना कि पाकिस्तानी, ना कि मुसलमान, ना कि कोई और, एज अ ह्यूमन एक इंसान मैं इसके लिए डोनेट करना चाहता हूँ, इसकी मदद करना चाहता हूँ। यही मेरी ख्वाहिश है कि ये ठीक हो जाए और अपनी जिंदगी नॉर्मल से गुजारे। तो मैं अफशीन के लिए बहुत फिक्रमंद था और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर आपका सनम बलोच और डॉक्टर दिलीप का, कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की, इसको लेके आया और एक अच्छा काम किया। और मैं डोनेट करना चाहता हूँ इसके लिए। मुझे खुशी भी होगी कि इसका इलाज हो जाएगा, लेकिन इसके घर में दो मेजर प्रॉब्लम्स है, आपको पता होगा। और मैं लाइव है ये कॉल्स में पूरी पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो पाकिस्तानी बाहर है पाकिस्तान के, जो ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है, अमेरिका में है, प्लीज इस तरह से हजारों अफशीन मौजूद है पाकिस्तान में, ना कि सिर्फ यही अफशीन है, हजारों अफशीन मौजूद है। प्लीज हेल्प करे, सबके साथ हेल्प करे, जितना हो सकता है करो। ये ना करें कि मैं 10 लाख दूं। अली कि आप कितना डोनेट करना चाह रहे हैं, आप कितनी मदद कर सकते हैं अफशीन की? जी फिलहाल तो मैं जो इमदाद में देना चाहता हूँ अभी स्टार्ट में, बाद में भी मैं इनके साथ कांटेक्ट में रहूंगा, लेकिन अभी मैं जो इन लोगों को बहुत तकलीफ है, मैं अभी 3 लाख देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह इन लोगों के अकाउंट में जल्द से जल्द आ जाएंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच। और अली ने हमें कॉल किया ऑस्ट्रेलिया से और 3 लाख जो है वो डोनेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे अफशीन के बारे में बता रहे थे कि उनका इलाज और उनकी बीमारी के बारे में फाइनली पता चला कि जी इनकी हड्डी जुड़ी हुई है, राइट? तो अब आगे क्या होगा? अभी आगे ये कि जैसे इसका जो आपने बताया था कि जो क्रेनियम और वर्टिब्रम, क्रेनियम हमारा सर जिसको हम स्कल कहते हैं, उसकी बेस होता है, और वर्टिब्रा जो रीढ़ की हड्डी होती है, उन दोनों का जो ज्वाइंट है वो पैदाइशी इनका जुड़ा हुआ है। अब इनकी जो सर्जरी होनी है वो जो ज्वाइंट है वहाँ पर ब्रेन स्टेम है, एक हमारी ज़बान में, वहाँ पर उनका रेस्पिरेटरी सेंटर और कार्डियक सेंटर है। तो वो सर्जरी के दौरान जब जिन्हा के डॉक्टर को दिखाया गया, हमें उन्होंने ये बताया कि इसकी सर्जरी के दौरान 50% चांसेस है, मगर हमने सोचा कि हम क्यों न जो हमारे यहाँ पर आगा खान के डॉक्टर अतर इनाम, जो यहाँ पर, फिर मैंने अपने बाहर के भी दूसरे जो इसका केस डिस्कस किया, उनसे मशवरा लिया, एडवाइस ली, तो उन्होंने कहा कि इसकी सर्जरी में एक न्यूरो स्पाइनल सर्जन जो बेस्ट हो जिनका, वो चाहे तो इनकी सर्जरी के दौरान ही, जो इनके सर्जरी के अंदर ही प्लेट इसकी लगेगी इसकी ज्वाइंट के बीच में,
اور ایک بہت اچھا نیورو اسپائنل سرجن اس کی سرجری. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے امید ہے میں آپ کے پروگرام کے تھرو ہم نے ان کے سی ٹی اسکین MRI ڈاکٹر اطہر انعام جو ہمارے آغا خان کے نیورو اسپائنل سرجن ہیں وہاں تک پہنچائے ہیں, اور ہم ان سے رابطہ کریں گے اور اس کے بعد ان سے ڈسکس کر کے ان کی پوری ٹیم ہے ایک, مطلب جیسے نیورو اسپائنل سرجن ان کے ساتھ ہو سکتا ہے, آرتھوپیڈک سرجن بھی ہو اور ان کے ساتھ ENT سرجن بھی ہو. تو اب ہم اس تھرو پہ, کیونکہ جب پہلے ہم اپنے طور پہ گورنمنٹ کے تھرو جا رہے تھے, اب حالانکہ پرائیویٹ میں جانا بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے. پھر ہم نے اس کو اس طریقے سے جب یہ واپس آئے تھے تو پھر ان لوگوں نے, گھر والوں نے تو ہمت ہی ہار دی تھی, کہہ رہے اب ہم لوگوں نے ڈرا دیا, ایسا نہیں ہماری آپریشن کے دوران اس کی کچھ ڈیتھ ہو جائے. میں نے کہا نہیں, وہ ڈاکٹروں کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, سائن کرانا, ہائی رسک کنسنٹ لینا, مگر ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے. ہمیں اپنی طور پہ دوسرے جو ادارے ہیں ہمارے, تو ہم ان سے ڈسکس کریں گے. ان کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو سرجری ہونے کے بعد اس کا آپریشن کامیاب پاکستان میں ہو سکتا ہے تو ہم یہاں کرائیں گے, ورنہ ہمیں ان کے لیے آگے جانا پڑا تو ہم باہر بھی کریں. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ سوری, ہاں وہ میں ان کو بتانا چاہ رہی تھی, میں آغا خان یا کبھی جاتی ہوں کیا, تو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے پیشنٹس, ان کے لیے انہوں نے ایک الگ وہ بنایا ہوا ہے. اگر آپ وہاں جائیں تو لکھا ہوا ہوتا ہے, تو آپ ان کو وہاں جا کے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. بہبود سوسائٹی. اور یہ جو ڈاکٹر اطہر انعام کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم ظاہر پرسنل کیسز وہاں پہ ریکمینڈ کرتے ہیں, جو ہم نے جیسے جب آپ سرجریز کے لیے جاتے ہیں اور جو آغا خان تک پہنچ جاتا ہے وہ obviously 4-5 جگہ آلریڈی بھی چیک کراتا ہے نا کمپیریٹیولی. تو یہاں تو یہ بڑی امید کی بات ہے کہ انہوں نے جیسے کہا تھا کہ 50% چانس ہے. آپ ایک پیچیدگی سمجھیں, ہڈی کا بھی مسئلہ ہے, دماغ کا بھی جو ہے وہ مسئلہ ہے, مسلز کا بھی مسئلہ ہے, اور آنکھ ناک کان ایریا کا بھی مسئلہ ہے. آپ سمجھ رہے, یہ ایک ہی جگہ ہے سارا. تو اسی لیے جب چھیڑیں گے تو یہ ساری چیزیں سپورٹ کر کے, اور پھر اندر ایک پلیٹ بھی ڈالنی ہوگی کیونکہ اس کا توازن اس کو بھی رکھنا ہے اس کے جسم کا, ریڑھ کی ہڈی کا. تو اس لیے ایکسپرٹیز کی ایک ٹیم چاہیے. لیکن اطہر انعام جو ہے, جو یہ پاکستان کی بلیسنگ ہے کہ جن کے 10% چانسز ہوتے ہیں نا, وہ اس کے سکسیس کیسز ہیں. وہ ملتا مشکل سے ہے بندہ, لیکن بہرحال ڈاکٹر اطہر انعام I also recommended ڈاکٹر اطہر انعام. ہاں, ڈاکٹر اطہر انعام جن کے 10% چانسز ہوتے ہیں. ہائی پروفائل ریسورس سے ان کے CT اسکین MRI ڈاکٹر اطہر انعام تک پہنچائی ہیں. اب وہ آج ہم ان سے ملیں گے ان کے طریق, اور ہماری کوشش ہے کہ افشین کا علاج ہو سکے. اور جہاں تک بات ہو رہی تھی دینے کی اور فنڈز کی, ایک کال ہے. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ, کیا بات کرنا چاہیں گے؟ کالر کا نام بتا دیں پلیز مجھے. ہلو, ہاں سلیم جی کلیم صاحب, کیا بات کرنا چاہیں گے؟ آپ سنم بلو صاحب بات کر رہی ہیں؟ جی میں بات کر رہی ہوں. جی سنم بلو صاحب, یہ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ میں نے بھی کرایا ہے یہ ٹریٹمنٹ, اور یہی کیس تھا. تو یہ ٹریٹمنٹ یہ پاکستان میں پاسبل نہیں ہے. اور میں نے ڈاکٹر اطہر انعام جو نام لے رہے ہیں, ڈاکٹر اطہر انعام, ڈاکٹر مغل شیرانی, یہ سب ان کو بھی دکھایا ہے. اور یہی کیس تھا. یہ کیس ہے ایکچولی, یہ لوگ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں, یہ ہے ڈسٹونیا. اور اس میں یہ ہے کہ مومنٹ ڈس آرڈر ہو گئی ہے. یہ مومنٹ ڈس آرڈر ہوتی ہے, اور اس کا پھر ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ برین میں ایک سرجری ہوتی ہے, اس میں ایک الیکٹروڈ لگا کے اور پیس میں یہ میں نے کیس کرایا ہے. میں نے انڈیا میں کہاں سے کروایا ہے, کس کا کروایا ہے؟ جی میں نے بھی 1 سال پہلے کروایا. کس کا کروایا ہے, اپنا یا کسی اور کا؟ نہیں میرا نہیں, میرے ہیں کوئی جاننے والے بچی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ان کی ضرورت ہوگی, ہمیں ان کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی, تو یہ بھی ہمیں کچھ گائیڈ کریں کہ کہاں سے کرایا ہے. ٹوٹل گائیڈ کرو. ٹوٹل یہی کیس تھا. سنیں ڈاکٹر صاحب, یہ جو ڈاکٹر صاحب دونوں بات کر رہے ہیں, ایک تو مجھے جو بتا رہے ہیں کہ وہ اسپائن کا اس کا پرابلم نہیں ہے, ہم نے بھی سارا ٹریٹمنٹ کرایا ہے, اور اس کا یہ MRI اور ایوری تھنگ, یہاں کوئی چیز پاسبل نہیں ہے. یہ انڈیا میں ہے اور بامبے میں ہے. ڈاکٹر پیٹرس واڈیا, میں نے ان سے ٹریٹمنٹ کرایا, وہاں انہوں نے پھر سرجری کی. ہم 2 دفعہ گئے تھے انڈیا, 1 دفعہ پہلے چیک کرایا, اس کے بعد پھر نیکسٹ ٹائم. تو 15 ڈیز کا یہ ٹریٹمنٹ, 10 ڈیز وہ رکھتے ہیں, تو اس کے بعد تھوڑی فزیوتھراپی وغیرہ کرا کے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ہے ڈسٹونیا کو پھر کور کرنے کے لیے یہ انہوں نے پھر ایک سر میں آپریٹ کر کے اور الیکٹروڈ لگاتے ہیں. الیکٹروڈ کے بعد پھر ایک ہارٹ کے اوپر اس کو ایک پیس میکر ہے, وہ پیس میکر لگا دیا جاتا ہے. تو وہ پیس میکر 10 سال کے لیے بھی ہوتا ہے, اس کی بیٹری جو ہے, اور 25 سال کے لیے.
तो जैसा वो करना चाहे। ये ट्रीटमेंट मैंने कराया और माशाल्लाह पेशेंट बिल्कुल ठीक है, 1 साल से बिल्कुल ठीक है। आप और मैं करा के आ चुका हूँ। और कितना आपका खर्चा कितना आया आप बता सकते हैं? जी हाँ, मेरा तो 40-45 आया था, लेकिन अभी जो है वो 45 से 50 लाख तक का खर्चा है। अच्छा, बॉम्बे में डॉक्टर हैं, सारा ट्रीटमेंट है, आई नो वेरी वेल। हम चाहेंगे हम आपका नंबर ले लेते हैं और डॉक्टर साहब को हम नंबर आपका दे देते हैं, आपसे बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे और बिल्कुल आपके थ्रू डेफिनेटली हमारा ये एम नहीं है कि हम कराची से, हमारा भी जहाँ से भी बिल्कुल अच्छी बात है कि कराची बहुत से अच्छी बात है, इन्होंने हमें एक बहुत बेस्ट गुड ठीक हो ना, इन्फॉर्मेशन हमें दी डायग्नोसिस ठीक हो, मतलब आप कैसे इनकी इन्फॉर्मेशन को जब मतलब वो हो सकता है उस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम, पहले आपका डायग्नोसिस ठीक है। बिल्कुल, अब बिल्कुल नहीं, हम भी तो वही फिर ये कहना क्या चाह रहे हैं कि कह अभी जब तक हमें नहीं ये जो ये नाम बता रहे ले हैं कि आप पाकिस्तान से ज्यादा है कि नहीं, नहीं, इसकी सर्जरी, वो कह रहे हैं कि कोई एक डिस्टोनिया पता नहीं क्या उन्होंने नाम दिया ना, डिस्टोनिया कि अपनी क्या जगह पे है, इनकी मसल की वजह से ये जो बता रहे हैं, मगर इनके साथ जो रीढ़ की हड्डी का जैसे ये बता रहे हैं उनकी सर्जरी का, तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के हवाले से दोनों चीजें हैं ना। अब जब हम डॉक्टर अतरी नाम से कंसल्ट करेंगे, वो डेफिनेटली जैसे ये बता रहे हैं तो वो भी हमें यही बताएंगे यहाँ नहीं होगा, तो हम थोड़ी फिर उनसे ऐसे ही कराएंगे, फिर जाहिर बात है हमें उसके लिए फंड की जरूरत होगी, तो उन चीजों की आपके सबसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अगर हमारे पास अगर इनका इलाज मुमकिन है, पॉसिबल है, तो हम यहीं करा लें, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर उसके बाद हम बाहर जाएं। मुझे ये तो लग रहा है कि इलाज मुमकिन है। देखिए मैं इसलिए ये मेरे भाई की जो कॉल आई थी ये बिल्कुल सही है, केस हमेशा केस टू केस है, जैसा उन्होंने कहा हार्ट के अंदर पेस मेकर लगाना है, हार्ट की धड़कन का, अभी तक यहाँ पे हार्ट का डायग्नोसिस का इश्यू नहीं आया। दूसरी बात ये कि मैं आपकी जिंदगी में अभी तक मैं डॉक्टर अथन नाम से नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं आज इतने केसेस वहाँ पे भेज चुका हूँ और मैं जानता हूँ वो इतना एथिकली साउंड डॉक्टर है हमारा, इतना एथिकली साउंड है, होगा 100% बताएगा, नहीं होगा 100% बताएगा, कहाँ से होगा वो भी बताएगा, वो इतना क्वालिफाइड जो है बंदा है। अच्छा, अब जब उन्होंने बताया उनके पास डायरेक्शंस भी बताएंगे। अब अगर ये बच्ची को अगर इंडिया में जाना है, वो भी कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, एहसन इकबाल से बात करेंगे, ठीक है, वो लोग मरीजों को वीजा दे रहे हैं, हम बिल्कुल भेज सकते हैं, इंसानियत की बात हो रही है। एक बच्चा भेजा था इंडिया इलाज के लिए, है ना, मुल्कों के वो अच्छा वो ले भी रहे हैं, वो दे भी रहे हैं, राइट। हम अपने वजीर दाखिला से बात करेंगे, वहाँ पे मौजूद होगा, वहाँ बिल्कुल वहाँ भी भेजा जा सकता है। और दूसरी, जैसे डॉक्टर साहब ऑलरेडी कंसल्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूके के अंदर ऑलरेडी जो है वो कंसल्ट कर रहे हैं। आप एक बात जहन में सोचिए कि डॉक्टर साहब को 3 महीने लगे इनको मिट्टी से यहाँ लाने में, कन्विंस करने के लिए, और आपके ख्याल में ऐसे ही मुल्क से चले जाएंगे? आप तो ये भी तो सोचिए, कुछ हकाइक भी है ना, कुछ हकाइक भी है सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अच्छी बात है, कॉलर्स का शुक्रिया। मेरे पास एक और कॉल है, मैं वो ले लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद रफीक साहब क्या बात करना चाहेंगे? मैं बता रहा था 30,000 में डोनेशन करता हूँ, तो मुझे जो है ना या कुछ कॉन्टेक्ट नंबर या कुछ सिस्टम जी, हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं और कुछ देर बाद हम आपको अकाउंट नंबर देंगे इनके बड़े भाई का, तो वो भी हम आपको देंगे और कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, तो आप डायरेक्ट आप इन लोगों से बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप क्या बात कर रही हैं इससे? कौन? भाई माँ दियो खिलो थ्यो नहीं का चारे पासे तू बैठी है ये दे गए। हाँ, अच्छा, इनको कह रही कि चारों तरफ तुम बैठी हो, में देखकर खुश हो रही है कि मेरी बच्ची नाम लेती है, आप इनको अच्छा लग रहा है। जमीला सनम बेटा, आप उधर जाओ, नाम बात करो बच्ची से। आप तो सिंधी बोल लेते हो, आपको तो एडवांटेज है। जमीला ने पूछे नालो आपसे बात करना। नालो छाए नालो बुदा नालो छाए नालो बुदा केडी तस्वीरा के रही है? माइक करेगा, माइक आवाज तो सुनो। अफशीन प्यारी तो लगे। ये मेरा भी नाम ले लेती है। अच्छा, डॉक्टर साहब नालो छाए हेरा मुखर जान, हेरा मुखर डॉक्टर जो नालो छाए वो नालो की है। हाँ, दिलीप। अच्छा, आई टीवी ते दिस अफशीन क्या भाई मैं ना मां टीवी और क्या बोलते ही डॉक्टर सुठो डॉक्टर कहा है। हे डॉक्टर, इसको दिवाली पे फटाके दिए थे, वो इसने फोड़े थे, पूछे इनसे। इसको दिवाली पे फटाके इनको दे के आया था मैं, इस पे घर पे इसने फोड़े थे, पूछे इनको। दिवाली पे क्या किया था बताओ? दिवाली ते छा क्यों बुधा अफशीन का फटाका दिवाली ते छा सुना माहड़ा या बिंदिया मां खड़ा मुखे हर बुधा का फटाका देगी मामा नहीं देगी। देखो जरा अफशीन ये मुखे खपे मां खड़ा या न खड़ा खान के तू आना ही नहीं अद्धी रे है ना कटे आना हुए
नहीं नहीं ये अपने भाई बहनों के नाम बताती है? अच्छा तव्हांजा केतिरा भाउ भेण नालो ॿुधायो पंहिंजे भाउ जो? कोई बताती है डॉक्टर साहब? जी जी बताती है? पूछे बताती हाँ पूछे। तव्हांजे भाउ जो नालो छा आहे? कहर हो गया याकूब बोल रही है। ॿियो? क्या याकूब अच्छा बीजो का अयूब का अच्छा चलो तव्हांजी दोस्त आहे, तव्हांजी सहेली आहे? दोस्त अथसि सहेली? अम्मी अबू का नाम पूछो इससे। नालो छा आहे हुनजो सहेली जो? तुम क्या जमीला इनके नाम अच्छा, इनसे पूछे, ये जब ऐसे बच्चे ना सके? इनके घर से जाते हैं ना स्कूल, चलें जी, आपसे कोई अफशीन तव्हां सां कोई मिलण आयो आहे? एहसन खान आयो आहे तव्हां सां मिलण? कल्ह बि मिलियो न तव्हां सां? सॾु कयां मां हुनखे? तव्हांखे सुठो लॻो एहसन? तव्हांखे प्यार करे थो? और ये सब सुठो लगे। चले जी, एहसन के लिए बहुत सारी तालियां। एहसन आ चुके हैं, एहसन आ जाए। एहसन खान हमारे साथ हैं और अफशीन के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन, क्या हाल है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। प्लीज, ये आपकी दोस्त है, आपकी सहेली है, आप साथ बैठे हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज अफशीन के लिए यहाँ आना क्या मकसद है? अफशीन के लिए दिल, लोगों के लिए दिल, इतना। अब मैंने आपको बहुत ज्यादा ये नोटिस किया है कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं मुल्क के लिए, लोगों के लिए। सनम आपको पता है जब आपके शो में, क्योंकि टाइमिंग नहीं बन पा रही थी काफ़ी अरसे से, दे वर कॉलिंग मी टू कम इन शो, बट क्योंकि कल मैं इनसे मिला और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके शो पे ही आ रही हैं, बिकॉज कुछ शोज ऐसे हैं जो शायद बहुत से लोग दिखाते हैं और बहुत से लोग आते हैं और यूजुअली रेटिंग्स के लिए होते हैं, लेकिन चंद शो ऐसे भी हैं जो जेन्युइनली आप काम भी करती हैं, पहले भी आपने ऑपरेशंस कराए हैं। सो आई वाज वेरी हैप्पी दैट दे आर इन राइट हैंड्स। सबसे पहले ये, बट आपको जैसे पता है काफ़ी बात इन पे हो चुकी है, आप सब लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। इनका एक सोशल मीडिया पे वीडियो जो, बिल्कुल, मुझे मुझे अफसोस ये हुआ कि डेली मेल इज़ नॉट अ लोकल पेज, डेली मेल जो है वो बाहर का पेज है। तो मुझे ये लगा कि पाकिस्तान में हम सब के होते हुए इसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने बात नहीं की, लेकिन एक फॉरेन पेज जो है, बाहर के लोग जो है वो शेयर कर रहे हैं। सो जब मैंने अपने पेज पे शेयर किया पहली बार तो ऑब्वियसली काफ़ी लोगों का रिस्पांस आया, बड़े अच्छे अच्छे लोग जो चाहते थे, इनको ढूंढ रहे थे और ये मिल नहीं रही थी। बट सब लोगों ने अपने अपने उन पे राब्ता किया, चाह रहे थे फैमिली से राब्ता करना, बट ऑब्वियसली वो आई फील आई एम फॉर्चुनेट कि मैं सोच रहा था मैं इनको कैसे मिलूं, इनकी फैमिली को कैसे मिलूं, एंड आई फेल्ट सो गुड कि आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू सी देम, क्योंकि एक देख के भी आपको साथ बैठ के आप फैमिली से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आपको एक तसल्ली होती है। अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था कि इनके फादर को ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो वो एक ही घर में इतनी सिचुएशन देख के इतनी तकलीफ होती है, ऑब्वियसली परेशानी भी होती है नेचुरली, लेकिन इस परेशानी को हम सब मिलके कोशिश करेंगे तो दूर भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं देख रहा था शो के बारे में, सुन भी रहा था, रास्ते में था, आई कुडंट वॉच द होल शो बट आई हर्ड दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर कॉलिंग इन एंड दे वांट टू गिव मनी। मैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि मैं पर्सनली चैरिटी लेता नहीं हूँ किसी से कि जी आप मुझे दे दीजिए, मैं इनका अकाउंट नंबर या इनसे बात करके अपने सोशल मीडिया पे लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ लोग डायरेक्टली इनसे खुद ही राब्ता करें, खुद बात करें। लेकिन मैंने देखा कि एक दो लोगों ने फौरन से इनकी तस्वीर लगा के पेज बना दिए जो चैरिटी लेते हैं, तो हमें देखना है कि ऑथेंटिसिटी कितनी है उस पेज की। प्लस मैं चाहूँगा ये कि जिस तरह से लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप अगर इनके हाथ में पैसा देंगे तो मुझे ये लगता है ऑब्वियसली दे नीड मनी नॉट ओनली फॉर हर इलनेस बट फॉर लॉट ऑफ अदर रीजंस। घर में शायद एक बेहतर ज़िंदगी के लिए भी पैसा इंसान को चाहिए होता है, सिर्फ बीमारी के लिए नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो भी फॉरवर्ड आए, चाहे आप हैं, हम इनको पहले डॉक्टर्स के पास लेके जाएं, खुद एफर्ट करें। पैसा दे देना एक बहुत आसान काम है कि आपने लेकिन सही जगह पहुंचाना, सही जगह पे पहुंचे पैसे के साथ, और इनको डॉक्टर्स तक पहुंचाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात, दो चीज़ें आपसे बड़ी दरख्वास्त है हमारी। एक तो आपकी बात एको हो रही है क्योंकि डॉक्टर साहब, डॉक्टर दिलीप जो इनको 3 महीने से देख रहे हैं, आज इनको डॉक्टर अर्थर इनाम आगा खान पहले जा रहे हैं, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर एक और इन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई कि ये जो फंड्स जमा होंगे वो एक कमेटी मॉनिटर करेगी जिसके ये मेंबर होंगे, तो ये भी एक ट्रस्ट की बात है ताकि वो सही यूटिलाइजेशन हो जाए। आपसे बेसिकली मेरी रिक्वेस्ट ये थी, आई एम सो ग्लैड कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, अब दुनिया आपको जानती है, देखती है, लाइक करती है। एक अलमिया हमारे साथ क्या हुआ जो हमें, जिसके ऊपर हमें आंसू बहाने चाहिए, ये बात आज साबित हो गई डॉक्टर्स की सीटी स्कैन MRI से कि बच्ची की पैदाइशी हड्डियां जुड़ी हुई थी। उसके बावजूद भी हमने ऐसे बहुत सारे लोग, इसकी माँ को
भुगता होगा जब हमने इसको अछूत समझा, जब हमने इसके बात करना छोड़ी, जब हमने इसको शायद कुछ जादू टोना समझा, जब हमने इसको पागल समझा, जब हमने हम इससे दूर हो गए। यानी इंसान से दूर हो जाए सिर्फ इसका हालत देख के, क्योंकि इसकी गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई है, जबकि ये बात साबित हो गई कि ये मेडिकल पैदाइशी हड्डी का प्रॉब्लम था। हमारे इस जहालत की, हम कह रहे हैं वहां जहालत है, हमारे अंदर जहालत नहीं है, हम शहरों में जहालत नहीं है, हम अमेरिका कनाडा घूमते, हमारे में जहालत नहीं है कि हम एक ऐसे बच्चा जो पैदाइशी तौर पे जिसकी हड्डी जुड़ी हुई थी, मेरे साथ भी तो हो सकता था, मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता था, हम इतने गिर गए हैं कि हम ऐसे बच्चों को अछूत कहना शुरू कर दें, जादू टोना वाला समझना शुरू कर दें, दूर रहना शुरू कर दें, हाथ लगाना छोड़ दें। आप यंगस्टर्स हो, आपको दुनिया जानती है, इससे बहुत बड़ा काम ये हो जाएगा जब आप लोगों को ये कह दोगे कि भाई ये लोग जो है ना, ये जन्नत का रास्ता है, अगर इनकी खिदमत करोगे ना अल्लाह वहां पहुंचा देगा, बजाय इसके कि हम ये रवैया रखें। बिल्कुल ये मैसेज आप आपकी बात बहुत अच्छी है। और सनम का ये जो शो है, नेचुरली सनम का मकसद भी यही है हमारा सबका, यहाँ जो हम बैठे हुए हैं, बिकॉज आई हैड अ फ्लाइट टू लाहौर एंड आई हैड टू डिले द फ्लाइट ओनली टू कम ऑन योर शो, कि मैं थोड़ी देर के लिए जाऊं। तो नेचुरली मुझे शायद एक ये बहुत बड़ा साइकिल शुरू हो जाता है जब आप जहालत की बात करते हैं। तो हम किसी को कहना बहुत आसान है कि वो जाहिल हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो क्यों जाहिल है, क्योंकि शायद अथॉरिटीज जो है वो चाहती नहीं है कि ये लोग पढ़ें, आगे बढ़ें। अगर अवेयरनेस होगी, इसलिए इट्स नॉट देयर फॉल्ट इन एनी केस। अच्छा एहसन, आपकी बात काट रही हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत जरूर ब्रेक लेना है, ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। एंड आपने वो कहते हैं ना कि मुंह की बात छीन लेना, जो कि बहुत मुश्किल थी। लोग पता नहीं क्या क्या बातें इन्होंने सुनी होंगी, क्या क्या सहा होगा, क्या क्या बर्दाश्त किया होगा, लेकिन आपने बड़ी आसान कर दी कि जहालत तो फिर हम में है, जाहिल तो हम है जो इन पे उंगली उठाते हैं या बात करते हैं। बट लोगों का क्या रिएक्शन होता है? इनकी अम्मी से पूछूंगी कि जब इनसे अफशीन से लोग मिलते हैं या बच्चे मिलते हैं, किस तरह, क्योंकि हमने जब शुरू में पढ़ा था कि बच्चे खौफ ज़दा हैं, लोग बात नहीं करते, मिलते नहीं है, तो वो कितना मुश्किल वक्त था इनके लिए, उस पर बात करें एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं। एहसन हमारे साथ हैं, अफशीन और अफशीन के वालिद साहब हमारे साथ हैं, वालिदा हमारे साथ हैं, हमारे रिपोर्टर वली, डॉक्टर साहब, फजीला कैसर और डॉक्टर मोहम्मद इमरान, सारे लोग और आप लोग हमारे साथ हैं। सबसे अहम बात, आप लोगों की कॉल्स आप लोगों की वो सबूत दे रही हैं कि आप अफशीन के साथ हैं। आप ही का साथ चाहिए और सबका मिलकर यहाँ पे आज कोई जंग, कोई लड़ाई नहीं है हमारी कि जी मैं सही तो तुम गलत, तुम सही तो मैं सही। लेकिन एक बात सही है, जैसे अवेयरनेस की बात हुई, तो वो इदारे होने चाहिए। इदारे जो है वो लोग जितनी कोशिश कर रहे हैं वो बना रहे हैं, लेकिन हुकूमत के हाथ में है। बिल्कुल सही बात है। एहसन ने आवाज उठाई कि भाई हमारे पास, हमारे पाकिस्तान की बच्ची, हम लोग आवाज उठाने से पहले बाहर के लोग आवाज उठा रहे हैं, हम क्यों नहीं देख रहे? क्या हमारे आंखों पे पट्टी बंदी हुई है? क्या हम नहीं देख सकते? जब तक कोई और आवाज ना उठाए हमें नहीं पता चलता। बट माँ बाप थर से कराची लेकर आने में उन्होंने 3 महीने लगा दिए। एंड वही वाली बात हम ब्रेक पे छोड़ के गए थे कि जी अब बाहर जाने में कितना टाइम लगाएंगे कराची से, तो ये खौफ क्यों है, ये मैं बात आपसे करूंगी। लेकिन अम्मा तव्हां खां पुछणो हुयो त ॿार इन सां कीअं रिएक्ट कंदा आहिनि? माण्हू हिन सां मिलंदा आहिनि या इन खां खौफ़ज़दा थींदा आहिनि? मतलब माण्हू देखे ॿी त कोन था न, ऐं कहंदा कि बाहर वञे थो न, बारड़ा ॾिसंदी है, बारड़ा तो बारड़ा इन सां इनको दुकान इनको तो पैसे देते हैं,
जब ये सनम ये जब बाहर निकलती है तो जो लोग इनके सामने आते हैं ना इनको खर्ची देता है, इनको प्यार ऐसे करते हैं लोग इतना इससे। प्यार करते सनम, ये हैं। जब घर से मैडम बाहर जब जाती ये है, आपको पता है जब ये यहाँ कराची इलाज के लिए आई थी तो इनको पता है कि अफशीन खुद बाहर जाती है तो वापस आ जाती है तो इनको इतने पैसे खर्ची मिल जाते थे, तो इसकी अम्मा ये मुझे फोन करती थी इसको इतने पैसे मिले, मतलब लोग प्यार तो मैं करते हैं इनको इससे। ऐसे कहता था इसको बाहर नहीं भेजा करो, तो इतनी कभी कभार हम वहीं रहते हैं तो ये अकेले जाती थी बाहर, तो इसकी अम्मी को मैं कहता था इसको अकेले नहीं भेजा करो, कभी कभार रोड पे गाड़ी का कोई मसला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, क्योंकि मैंने सुना था ये बात बड़ी मुझे अजीब सी लगी थी कि लोग जी खौफजदा हो रहे नहीं हैं, वो बात लोग डर उन्होंने रहे हैं, तो ये मैं झूठ समझता है हूँ सर। नहीं तो ऐसा मैं वही नहीं। सोची थी कि बहुत हम लोग भाई नहीं ये भी ऐसी बात तरबियत नहीं है अपनी औलाद को उसके अपने आप को पड़ोस सिखाएं के वली उनके पड़ोसी है और बहुत सी लोग उनके पड़ोस के लोग हैं इनसे बहुत प्यार करते हैं, देखिए, ऐसा तो नहीं ये है बच्ची कि जब ये घर बयान से नहीं। बाहर जाती है सनम, यकीन करो कि ये इसकी हालत ऐसी है कि पहले तो सबसे प्रायोरिटी है कि इसको इलाज होना चाहिए, इसकी जब सेहत सही होगी तो चलना फिरना एक लायक होगी तो बाहर जाएगी। मगर इसकी एक और ख्वाहिश भी है, मैंने आपसे पहले भी आप बात कर रही थी तो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, इनकी ख्वाहिश है कि मैं स्कूल जाऊँ। और ये स्कूल कैसे जाएगी जब दूसरी बच्चियों को देखती है स्कूल जाते हुए, तो इसकी दिल से क्या गुजरता होगा कि मैं कैसे जाऊँ। मगर इसकी मजबूरी यही है कि वो चल फिर नहीं सकती है, मेन सड़क से जा नहीं सकती है। मैंने इससे पूछा था तो कह रही थी मैं पढ़ूंगी। कहा था डॉक्टर ने क्या बोला था? क्या कह रहे हो? क्या डॉक्टर दिलीप ना कहा नेटियो मोटरियो ले रहा हूँ चढ़े घुमा जाए ले हाँ, दे ये कह रही है कि अफशीन ने इसकी अम्मी को बोला था कि डॉक्टर, मैं इनके घर जब भी जाता रहता था तो इसने बोला था कि डॉक्टर दिलीप को बोलो कि मुझे एक बाइक लेके दे, मैं चला के दूं और वो चलाऊं। इसने बाइक देखी है, व्हील चेयर का इसके माइंड में ये ख्याल आ गया है कि व्हील चेयर पे मैं जाऊंगी तो घूमूंगी, और स्कूल आपको- जाऊंगी, बाहर जाऊंगी, लोग और देखूंगी। आपके थ्रू में ये बताऊं इनके घर में पानी का इश्यू नहीं था, इनकी फैमिली, इसके 4 बहनें हैं। आपके प्रोग्राम के थ्रू में ये भी कहूंगा मोर देन 15 ईयर के हैं, जाहिर बात है इनके लिए इनकी फैमिली के ऊपर ये भी बड़ा बोझ है। और मैं जब भी जाता था तो जमीला का मुझसे पता है आपको क्वेश्चन क्या होता था, वो इसकी बीमारी से ज्यादा मुझे कहती थी मुझे नौकरी दिलाओ, मेरे बेटे को नौकरी दिलाओ। तो मैं इसको कहता था ये तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए, हमारे मजहब में हम कहते हैं लक्ष्मी, तो मतलब ये तुम्हारे पैसों की देवी बने। और मैं समझ रहा हूँ कि ये आज वो ये खुद भी मानते हैं इन चीजों को कि भाई ये तुम्हारी इस बच्ची की वजह से, मतलब जो तुम समझ रहे हो कि ऐसा नहीं है, और इनको ये होती थी कि फिक्र की इलाज की नहीं थी, मैं इनको समझाता था। उसका नसीब जो होगा हाँ, उसकी किस्मत में होगा बेशक। नहीं, मगर अल्लाह इनको ताला ने जॉब उसका की भी नसीब बहुत मतलब अच्छा देखिए लिखा होगा। इनको जैसे ये माँ है ना, इसकी माँ 2 घरों पे, एक घर पे जाके सुबह में 3 घंटे बर्तन धोती है, दूसरे घर पे जाके कपड़े धोती है। जब इसको मैं कराची भेजता था तो ये जिनके घरों में काम करती है उनके घर में जाके मैं उनसे इसकी छुट्टी की मंजूरी देता था, उनको कहता था इसको 1 हफ्ते के लिए छुट्टी दे दे और इसकी तनख्वाह नहीं काटना। बिल्कुल। और इस तरीके से इनको ये टेंशन होती थी मैं जाऊंगी तो पीछे मेरे घर का गुजर सनम, एक बड़ी खूबसूरत बात जो मैंने नोटिस की, आप देख रही थी इनकी वालदा जो वो भी मुस्कुरा रही हैं इन हालात के बावजूद भी, शी इज होपफुल एंड हैप्पी। और मैंने एक और बात जो नोटिस की, इनके इलाके में लोग बड़े ज़बरदस्त लोग हैं वहाँ के, क्योंकि जहाँ पे ये ठहरी हैं वो भी इनके अपने इलाके के लोग हैं जिनके साथ आई हैं, जिस तरह ये बैठे हैं, आपस में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन सब मिलजुल के कुछ करना चाहते हैं। बट जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये लेस एबल हैं और ये स्कूल जाना चाहती हैं, पाकिस्तान में तो बहुत से जो एबल बच्चे उनको चांस नहीं मिल रहा स्कूल जाने का, तो हम वो तो बहुत दूर की बात है उस इलाके में। सो बेसिकली मुझे एंड ऑफ द डे यही लगता है कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर एजुकेशन होती तो शायद बहुत छोटी एज में इनका इलाज कराया जाता है, इस क्योंकि शी इज ग्रोइंग अप, इट्स गेटिंग वर्स, तो जितनी जल्दी हम करा सकेंगे उतना ही इस फैमिली का फायदा है। एजुकेशन, अवेयरनेस, हेल्थ, ये बेसिक इश्यूज हैं हमारे, ये सॉल्व होंगे तो हम इस तरह के केसेस इतना खराब होंगे ही नहीं जितना सिवियर हो गया है इसका इशू। जैसे ये बता रही है कि शुरू में जब उसको प्रॉब्लम था तो डॉक्टर ने कहा था कि कॉलर लगा देते थे, तो कहती है जी हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा जी सब चीजों के पैसे इसके नहीं थे। बाद में अभी इन्होंने भी यही बताया कि हमारे पास कॉलर अब इन्होंने अरेंज किया, लेकिन ये कहते हैं कि ये पहले लग जाता तो ये इतना सिवियर नहीं होता, ये पहले से बेहतर हो जाता। लेकिन खैर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास है ये इश्यूज, तो हमें अपने लोगों को चाहे प्रोग्राम के थ्रू या चाहे इनके थ्रू बताएं ताकि अब जो अगर किसी और के साथ ये प्रॉब्लम है तो वो ना हो। अच्छा, अभी हमें यहाँ पर इकरार उल हसन ज्वाइन करेंगे और इकरार का बहुत शुक्रिया। और सिर्फ 2 मिनट के लिए वो हमारे पास आए, सिर्फ हमारे लिए 2 मिनट। कैसे इकरार, आप ठीक है? थैंक यू सो मच। आई नो आप दूसरे शो में थे और आप अफशीन के लिए यहाँ पर आए, क्या बात करेंगे?
आवाज माइक ऑन कर दें. आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया कि मैं अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, वक्त की सूरत में भी, रिक्वेस्ट की सूरत में भी, और इंशाल्लाह इसके अलावा भी जो कुछ हो सकता हुआ हम ज़रूर करेंगे. बस ये मैं हमेशा, आप प्लीज़ भी तशरीफ रखिए. प्लीज आप आ जाए. आप बैठे. इट्स ओके. नहीं, मैं होस्ट में, मेरा खड़ा होना ज़्यादा बेहतर. आप बैठ जाए. फिर आप कहेंगी मैंने आपकी कुर्सी संभाल ली, लेकिन कुर्सी छोड़नी नहीं चाहिए, अपनी गलती की मैंने. मुझे लगता है सनम के ऐसे किसी भी मामले में पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बैक जुम्बश कलम इस बच्ची का मसला हल कर सकते हैं. अल्लाह ने बहुत नवाजा है लोगों को, बिल्कुल. और ऐसे भी जो बेटियों वाले हैं. और बेटी का दुख अब मैं शायद इस तरह से, क्योंकि मेरे भाई की बेटी, आपकी भी मुलाकात है उससे, छोटी सी बच्ची है, तो बेटियां बड़ी प्यारी चीज़ होती हैं, बहुत घर की रौनक, बड़ा मान होता है उन्हें अपने. तो ये हमारी बेटी है पूरी कौम की, और मुझे लगता है कि अपने बच्चों को आप सामने रख के देखें कि खुदा ना खास्ता अगर परवरदिगार ने हमारी औलाद को ऐसे पैदा किया होता तो हम क्या बिगाड़ सकते थे उस परवरदिगार का, उसकी ज़ात का. अगर हमारे बच्चे अच्छे हैं, अच्छे स्कूलों में जाते हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करने का एक तरीका ये हो सकता है कि उसने जितना हमें नवाजा है उसमें से कुछ थोड़ा सा इस बच्ची के लिए. तो बस ये दरख्वास्त है. और मुझे जो अमाउंट बताई है, मैं जानता हूँ पाकिस्तान के लोग बड़े शानदार लोग हैं. अब यकीन कीजिए, तो बस आपको प्रोग्राम का वक्त ज़्यादा पड़ जाएगा, ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये मामला हल हो जाएगा. और अगेन दरख्वास्त ये है कि ऐसी बच्चियों को जो ठीक हो सकते हैं, कुछ मैंने वहाँ पे भी ये पूछा कि ये मामला बेहतर हो सकता है, और अगर हो सकता है और फिर हम कोई कंट्रीब्यूट ना करें तो फिर हम सब बहैसियत कौम 22 करोड़ के 22 करोड़ लोग बरोज़े महशर जवाब दे होंगे अल्लाह ताला की ज़ात के सामने कि हम कुछ कर सकते थे, एक बच्ची की ज़िंदगी बचा सकते थे, एक बच्ची की ज़िंदगी को बेहतर कर सकते थे, और हमने वो नहीं किया. खुदा न खास्ता अगर ये बच्ची यहाँ से मायूस जाती है तो फिर हम सबको, हर एक को हम में से जवाब देना होगा बरोज़े महशर. और इंशाल्लाह हम में से कोई एक भी आज इस बच्ची की जिम्मेदारी उठा लेता है तो पूरी कौम सुरखरू होगी कि हम एक बच्चे की ज़िंदगी को बेहतर कर सके. और ये इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है और बहुत यकीन है ये मामला हो जाएगा इंशाल्लाह. आपको पहले ही मुबारकबाद देता हूँ कि हमने इस बच्ची की ज़िंदगी को ठीक कर दिया इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. और हमारी हुकूमत के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मतलब हम लोग खुद तो सब कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? बुनियादी तौर पर ये सारी जिम्मेदारी ज़ाहिर गवर्नमेंट की है कि ऐसे किसी भी शख्स को, ऐसी किसी भी फैमिली को अपनी इज्जत नफ्स दाव पर लगाकर टेलीविजन पर आकर दामन ना फैलाना पड़े. ये हुकूमत की जिम्मेदारी है. लेकिन मैंने ये तहिया किया है कि अब हमने अपने जोरे बाजू पर करना है जो भी करना है. अब किसी को बुरा नहीं कहना, किसी को जब तक हम खुद करके ना दिखाएं. जो हम कर सकते हैं कम से कम हम वो जरूर करें. जिस तरह मैंने कहा कि हुकूमत नहीं कर रही, बुरी बात है, हुकूमत को ये करना चाहिए. लेकिन अगर हुकूमत नहीं कर रही तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भी और आप भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे. सवाल आप में से और हम में से हर एक से किया जाएगा. ये अगर खुदा न खास्ता ये मायूस जाती है, जिसका इम्कान नहीं है इंशाल्लाह. इकरार अगर जाते हुए आपने बहुत अच्छी बात की है कि ये और मैसेज दे जाएं. मेरे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा. 2.5 करोड़. और आपने भी कह दिया कि हुकूमत नहीं करेगी कुछ. अगर हमें 2.5 करोड़ बच्चों को फिक्र करके अपने बच्चों की तरह स्कूल नहीं भेजेंगे, जो फजीला बहन कह रही है, वही जहालत दर बदर होगी, वही 8 बच्चे इसी तरह पैदा होंगे, वही मैल न्यूट्रिशन होगा, वही बेरोजगारी होगी. तो ये भी एक मैसेज किसी तरह दे जाए कि खुदारा एक एक बच्चा पकड़ लें. 22 करोड़ में से एक एक बच्चा पकड़ेंगे, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल भेज सकते हैं ना. बिल्कुल किया जा सकता है. तो ये मैसेज और ये नहीं कर सकते तो आप अपना वक्त देना शुरू कर दें. आप ये करें कि 2 घंटे बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दें. जो आपने पढ़ा है कम से कम वो कन्वे करना शुरू कर दें. जितनी अखलाकियात आपने सीखी हैं वो इन बच्चों को सिखाना शुरू कर दें. जितना दर्स आपने लिया है सोसाइटी से वो आप इन बच्चों को बताना शुरू कर दें. तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं. ये कौम बड़ी शानदार कौम है. मैं गलियों में, बाजारों में, मोहल्लों में, थड़ों में, छोटे आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द. हम इसको भी स्कूल जाते हुए देखेंगे इंशाल्लाह. और हम पाकिस्तान के हर बच्चे को स्कूल और हम आपको थर्ड जाते हुए देखना चाहते हैं. अब आपने थर्ड जाना है इंशाल्लाह. यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक है. इकरार को जाना भी हम दूसरे शो से इकरार के लिए उधार मांगा है हमने. इकरार भाई के लिए कह रहे थे कि सनम के शो के बाद मुझे वली आप मुझे वादा करोगे इकरार भाई से मुलाकात. मुझे जिंदगी में बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इकरार भाई से मिलूं. खुशी होगा क्योंकि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ. और मैं जब इस प्रोग्राम के थ्रू इकरार भाई से मिला हूँ, और ये हमारे पाकिस्तान के हीरो हैं, मैं इनको हीरो मानता हूँ. बिल्कुल. और बहुत शुक्रिया सलाम जिंदगी का, उन्होंने इकरार को हमें दे दिया. ये था कि अगर हमें प्रोग्राम छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आते हैं बाद में.
جین ٹھیک اوکے جی ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اور افشین بہت خوش ہے نا. آپ 4 منٹ ہے ہمارے پاس, میں چاہوں گی سب سے ایک جملہ. بس سلام میں یہی جیسے اقرار بھائی نے بولا, آپ نے سب لوگ بول رہے ہیں, یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں یہ سامنے بیٹھے ہیں, ان کی ہیلپ کے لیے یہاں پہ ہیں. پاکستان پورا دیکھ رہا ہے, پاکستان سے باہر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, جتنے لوگ ان کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ ان کا علاج ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں, باقی آپ جس طرح سے پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں اٹس ویری نائس. عدت آپ کچھ چون دو عوام کے پبلک کے مانو کے کچھ چون چاہیں دو ایتا پانچے علاج جے لائے. ہی ہیز اے مائک, یا ان کو لگا ہوا مائک. آپ بولیے پلیز, آپ بولیے. असांजे कान्हे नींगर पूरो इलाज करायो जा बे रोजगारी असांजी ॾाढी आहे ख़तम करे हूं माण्हू वारता धोए धोए हूं तंग थी गई कपड़ा धोए धोए कॾहिं मानी मिलिया थी करे कोन वो माण्हू कहिड़ी में ॾिसी प्यारी आहे तव्हांखे ॾाढी प्यारी आहे तव्हांखे होए में न आख़िरी नंबर में न ॾाढी प्यारी आहे बची सॼे घर ना प्यारी आहे सॼे न तेरी आई मां मिन के रुने ने सॼे काने कोने केॾे बच सकोन बच सॼी मोकलाई ने वॾी मिनकी नंढी सॼे रुने ने काने कोने. आप देखिए माँ बाप के लिए औलाद कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है. और बेटी असां डॉक्टर दिलीप मदद कराए थो इथे तेड़े आयो मल्हाणी दिलीप डॉक्टर असां ये मेहरबानी जेको असां इथे तेड़े आयो जो छो तव्हां चाहियो था हिन जो बि इलाज थी वञे, अदा जो बि इलाज थी वञे, है ना, ॿिन्ही जो इलाज थी वञे. बेरोजगारी ख़त्म असांजी कर हूं ठेका धोए धोए बर्तन धोए धोए थक थी गई है. अल्लाह रो कसम हमें ए असां सां प्यार कर दी जी. अच्छा इनका बेटा ये कह रहे हैं उनको भी रोजगार दिलाया जाए, इनकी ख्वाहिश है कि मतलब हमारे एमपीए डॉक्टर महेश कुमार मलानी ने ये ऐलान किया था इसकी माँ की और इसकी बेटी के जॉब के लिए. ठीक है उनसे. अच्छा और आई एम सॉरी आपकी बात, आप कह रहे हैं कि सिर्फ कमाने वाली ये है, इसके अलावा कोई नहीं कमाता. 8 बच्चे हैं, आप हैं, वो भी आपकी भी तबीयत सही नहीं है उनके, और कमाने वाली थर जैसे शहर में मिट्टी के एक इलाके में ये कमाती हैं. वो 2000 जुड़ी 1500 जुड़ी हुआ में था और महीने के 1500 मिलते हैं. 1500 2000 हुआ में था 2000 जो कोई मंगे वो ले. इनके घर में पानी का कनेक्शन नहीं था, ये पानी इनकी बेटियां भर के आती थी. हमने जो हमारे वहाँ के चेयरमैन है बेहतर कौन समझ सकता है, मतलब चाहे बात ये कि ये तो एक फैमिली है जो हमारे सामने जी हाँ, इस तरह की बहुत सी घर में अगर आप वैसे देखा जाए, देखिए पानी का हर जगह इशू है. अगर आप अपने एमपीए की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक घर में पानी का कनेक्शन लगवाना नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पूरे इलाके में पानी का कनेक्शन लगवाना है. और ये इनकी ट्रीटमेंट वादा जब तक निभाएंगे नहीं बिल्कुल. मैं तो माजरत चाहती हूँ आप सबसे बहुत, मतलब मैं हो सकता है कि इस वक्त थोड़ा रूड हो रही हूँ, लेकिन इशू यही है कि थर की अगर आप बात करते हैं, थर बहुत बड़ा है. अगर आप अपने एमपीए साहब को प्रमोट कर रहे हैं तो वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ काम करके दिखाएं. प्रोमिसेस तो सारी जिंदगी आवाम से लोग करते रहे, लेकिन उन प्रोमिसेस को अगर फुलफिल किया होता तो आज हम इस तरह नहीं होते लोग. जब तक वो अपना प्रॉमिस नहीं पूरा करेंगे तब नहीं. तक. अच्छा 5 सेकंड से आपके बस वाइजा मरिद तो फवा यशफिन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ही शिफा देता है. आज एयरवाई ने इंतजाम कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह इनका इलाज मैं जाती तौर पर 100% यकीन रखता हूँ पाकिस्तान में इलाज हो जाएगा. ये बच्ची है माशाल्लाह आपकी कोशिशों की वजह से अपने पैरों के ऊपर चलना शुरू करेगी, और हमें इज्तिमाई तौर पर जैसे सब कह रहे हैं कोशिश करनी चाहिए तालीम शऊर देने की. ओके जी, आप सबसे इजाजत. इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही, अल्लाह ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हम अफशीन को दोबारा आपके सामने लेकर आएंगे और अफशीन बिल्कुल ठीक होगी. और दुआ है अंकल के लिए. ऑडियंस ने भी कहा कि वो मदद करना चाहते हैं, और पूरे पाकिस्तान से आपको हम नंबर्स देंगे, मदद कर सकते हैं. खुदा हाफिज. अगर टाइम बचा तो आप अपनी बात कंप्लीट कर लें. आप कुछ कह रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि लोग पैसे देना चाह रहे हैं या कुछ भी हेल्प करना चाह रहे हैं तो प्लीज कीजिए प्लीज, और या फिर आप दुआएं दें. खुदा हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.